Ladies and gentlemen, welcome to hashtag Women Power, a global movement wherein we have mission to have 1 million women on this platform by 2024. The movement is already spread in 20 countries in the world, and the women, irrespective of caste, creed, color, nationality, and religion, that is the mission. This is the mission taken along with Dr. Kiran Bedi, my mentor, 15 months back. Am I crazy? People call me crazy. Yes, when you go for a mission like this, people might say I'm crazy. Yes, I am, and we are already at 700,000 women around the world. I am feeling delighted this evening to have with me on this show a real, not real, firebrand personality. It is real होती है Bollywood की, but this is the real firebrand personality. Supreme Court lawyer, well known, a very bold, strong, Subuhi Khan. Warm welcome to you with folded hands, Subuhi ji. Thank you so much, Bakshi ji. It is my pleasure. Very great. Ladies and gentlemen, let me have the pleasure to introduce my guest of honor, Women Power. So guest of honor, this is the Women Power program, and she's a Women Power. And I would say Women Power of par excellence. Subu is born in Meerut in a Muslim family. Her grandfather, late Zia Ullah Khan, was deputy superintendent of police in Meerut in 60s. There's a wonderful story of her grandpa, which we would certainly be like to share here. A very bold police officer of yesteryears. At that time, there used to be dacoits who used to come on horses. In one of the encounters, there were many encounters, one of the encounters, Subui's grandpa, his jeep crashed into a tree while shooting and chasing the dacoits. The jeep steering entered into his chest and he broke his ribs. But he did not lose courage and somehow came out of the jeep. Just then his eyes fell on his companions who were trapped in a jeep. Her grandpa pulled them out, and especially one of the guys, and took him out and saved his life. But due to forceful pulling, his broken ribs got entangled into internal organs of the body, due to which he could not survive and lost his life on duty. Now, why I'm saying in the intro of Subuhi Khan about the grandpa is that you can see from the family she belongs. The fellow whom he saved used to go to Subuhi's house throughout his life, and respecting Subuhi's grandmother and giving her equal status all the time, even if he attained a senior position in the police force. With this real story, not the real story, we can get a feel. That's why I decided to talk about the story here, that Subuhi carries that DNA of grandpa to be bold, bedrock, solid, Subuhi Khan, and people call her great warrior. In fact, Subuhi has been saying that her hard work, bravery, friendship, loyalty, patriotism, you will see today, you may have already seen earlier, but today you will see again, inherited from her grandfather and is her capital rather than a property. Wow, what a statement. She believes in saying that she will spend a lifetime with it contributing to the community and the country, Bharat Desh, and pass it on
to her lovely son called Kabir before leaving this world. Wow, what a statement indeed, Subhiji. Thank you so Now, much. coming to Subhi's background educational, she studied bachelor's from Chaudhry Charan Singh University. I had gone there, I think, 20 years back to deliver a keynote address. Pursued her BCom and LLB. And after that, she worked for a private sector, eValue, served as a market research analyst. And then another company she worked with, Hadrick and Struggles, again research analyst till 2010. After that, she started practicing as a Supreme Court, as a lawyer, and during last 11 years plus, her career became well-known, famous lawyer. Apart from her continued her social work, she got known through media when she was supporting and taking stand for Citizenship Amendment Act 2019, supporting Triple Talaq Act. She really gained enormous fan. You can see her Twitter. She has a lot of followers. You can see her Facebook. She has a lot of followers. And especially taking bold and strategic deliveries with regard to India as a great nation and Bharat Mata Ki Jai, Vande Mataram slogans to ignite minds and behaviors of people, and as a great motivator for nation building exercise as against Today gang. Today, when she is known as great lawyer, social activist, columnist, motivational speaker, and an artist, in addition to this, which is unbelievable, she is also a spiritual seeker. I think we need to get that out of her today. Proudly, when we see her on many channels today, news channels and TV channels, as a political expert, debating on such national issues of importance, and her value add is immensely being appreciated by a large number of people. I am also a fan of her. I watch her very closely. Not only by Indians, but like people like us, NRI community around the world, both NRIs, OCIs, original citizens of Indians around the world in many countries. When I shared a flyer with my NRI community in the world, many responses came, wow, she's going to be there. A lot of people are joining, have joined, and will be joining from different parts of the world. That is the powerful story of this young, dynamic, powerful, powerhouse women power, Subhi Khan. She, in fact, when I look at her, she is known as a Wonder Woman. At the same time, she is beautiful and she has a beautiful heart and thought. What combination of heart and thought towards India, bright India, great India. And her every word she speaks, whenever she speaks, every word means a lot for whole society. And she keeps motivating people to be Deshbhakt, and India can do it. India has always been doing, India will always do it. India is the best and the best and the best. So, I can go on and on to talk about you, but then I need to move further. What a pleasure to have you on my show this evening. बहुत बहुत धन्यवाद बख्शी जी. Actually, you made me nostalgic and emotional, and I'm feeling a mixture of feelings right now. Many emotions actually. मुझे नहीं पता था कि आपने इतने अच्छे से रिसर्च करी हुई है, मतलब मेरे बैकग्राउंड के बारे में, या फिर आप इतना कुछ जानते हैं. मुझे लग रहा था कि शायद ये चीजें मुझे खुद बतानी पड़ेंगी, but it is an absolute honor. And I'm really connected to this cause जो आपने pick up किया है, and I'm most certain कि आपका जो target है 1 million women achieve करने का by 2024, if I'm not wrong. I'm sure you're going to achieve this, because
ये बहुत बड़ी चीज है जिसपे बहुत ज्यादा लोग उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है। मुझे लगता है कि विमेन पावर एक इतनी बड़ी असेट है जो डोरमेंट पड़ी है सोसाइटी में। मतलब अपनी कैपेबिलिटीज को महिलाएं पूरे तौर पे या तो समझ नहीं पाती हैं, या फिर समझ पाती हैं तो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, या फिर बहुत सारे कारणों से कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटीज दबी रह जाती हैं। और इट इज सच अ नोबल कॉज विच यू हैव टेकन अप, एंड आई एम एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। और बहुत सारी चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी जो भी आपने टच किया। एंड फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मैंने We अपने will come to दादाजी को। each question. We will come to each questions to you. जी जी, प्लीज Right, प्लीज गो ma'am. अहेड। मैं श्योर। Yeah, yeah. We will certainly. So today's show is, while ladies and gentlemen, I will be speaking in Hindi, in English, and my colleague Varsha ji, she is the women power from Global Talent. She has been driving this movement from day one, last 15 months with me. She will be asking questions in Hindi. It will be a jugalbandi between me and Varsha ji. And whosoever is on any platform, whether you are on Zoom, you are on YouTube, you are on Facebook, you are on Global Talent Television, please park your questions. I will take up your most of the questions and request Subhuji to spend more time on it. So don't worry about it. And With pleasure. we will try to respond to most of the questions, whatever is possible. We have a time frame of 1 hour, but it can go another 5-10 minutes. So please do not hesitate to ask questions, write it down. And those who are on Zoom, maybe I can ask my coordinators to get you on the line yourself to ask questions. So here I start. Subhuji. First of all, now, before going to question number first, I must thank Ajay Chaudhary from Germany. He's part of the GKPD Germany, and I am also associated with GKPD. Ajay, you connected me to Subui, and it's a indeed pleasure that I got her. So I must give credit to Ajay still in Germany. He's also joining, still in Germany, and he connected me, and then we had a lot of interactions last so many days. And I was getting more and more excited when we had interaction. My first question goes to you. When I look at you, your background, what you are today you're seen as very strong, bold, firebrand, social activist, so powerful. The audience and myself will be very keen to know about your grandpa, your mom, your dad, and how was your upbringing as a child. That too in a place like Meerut, and that too a Muslim family where, it's not only Muslims, it's at that point of time, even our families, girls were treated differently as compared to boys. How was your upbringing as a child and how did you grow up? Yes, Luigi. Yeah, I think this is a very relevant question because parenting and family background plays a very important role in making or developing a person's psyche. और आपने जो ग्रैंडफादर वाला एग्जाम्पल मेरा लिया वो बहुत जरूरी यहाँ पर बताना इसलिए है बिकॉज मैंने अपने ग्रैंडफादर को देखा नहीं है। मेरे जो घर में जो बड़े लोग हैं, मेरी बुआ हैं और जो और चाचा ताया, मेरे फादर, मेरे अब्बा, ही इज नो मोर, बट उनसे मैंने अपने ग्रैंडफादर के बारे में ये चीजें सुनी हैं। और जब इस तरह की चीजें सुनकर कोई बच्चा बड़ा होता है, जेनेटिकली नो डाउट ये चीजें जेनेटिकली तो ट्रांसफर होती ही है किसी इंसान की पर्सनालिटी में, बट जब आप अपने इतिहास से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी रूट्स से जुड़ते हैं या उन आपका एक करेजियस एक हिस्ट्री होती है जो जुड़ी होती है आपसे, उनको जानने का आपकी पर्सनालिटी पे डेफिनेटली एक असर पड़ता है। कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि मेरे दादाजी ने वर्दी पहनकर देश की सेवा करी। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जानकर कि जिस वक्त वो मेरठ में पोस्टेड थे, वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट द टाइड, उन्होंने बहकर बहुत सारी चीजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जो बहुत टफ भी था उस समय में, उस वक्त जुए होते थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे जुओं के अड्डे बंद करवा दिए थे मेरठ में। देन
प्रोस्टिट्यूशन, बहुत फोर्स्ड विमेन ट्रैफिकिंग और इस तरह की चीजें होती थी, तो वो उन लोगों ने उनको बहुत ज्यादा, बिकॉज ये चीजें आपको पता है कि एक बहुत ही पूरा एक नेक्सस होता है इस तरह के गैंग्स का, तो उनसे लड़ना, इवन इफ यू आर इन पुलिस, इवन इफ यू आर अ सीनियर पुलिस ऑफिशियल, it is very difficult to fight with these mafias and these organized criminal nexus. तो उसके खिलाफ भी उन्होंने एक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी उस वक्त। जो एंटी नेशनल्स या जो अपराधी होते थे वो घोड़ों पर आते थे, तो उनको उनका पीछा जीप में, वो घोड़ों पर दौड़ते थे, उनके पीछे जीप में जाना पड़ता था। इसी ऐसे ही एक एपिसोड में मेरे दादाजी ने अपनी जान गंवाई। ही लॉस्ट हिज लाइफ व्हेन ही वाज लाइक फॉलोइंग दीज डकैट्स, और उनकी जीप जाकर एक पेड़ से टकराई, और जैसे आपने एक्सप्लेन कर चुके हैं आप कि वो जो जीप का स्टीयरिंग था वो उनकी रिब्स में लग गया एंड हिज रिब्स वर ब्रोकन। और बट उस वक्त तक भी ही वाज अलाइव, तब तक भी ही वाज अलाइव। वो जैसे तैसे जीप से बाहर निकले, और बाहर निकल के जब उनकी नजर पड़ी कि उनका एक कलीग जो कि उनसे आई थिंक रैंक में जूनियर थे, बट ही वाज वेरी क्लोज एंड अ वेरी ब्रेव मैन इन हिज टीम, तो उनको वो बिकॉज जीप पलट गई थी तो वो दब गए थे, तो उनको जीप से निकालने के लिए दादाजी को उनको ऐसे खींचकर बाहर निकालना पड़ा। तो बिकॉज द रिब्स विच वर ऑलरेडी ब्रोकन, वो फोर्स लगने के कारण उनके इंटरनल ऑर्गन्स में वो मतलब धंस गई, एंड जिसके कारण उनकी डेथ हो गई। और जिनको उन्होंने जीप से बाहर निकाला था, फॉर्चुनेटली ही सर्वाइव्ड, और वो पूरी जिंदगी भर इस चीज को बहुत मानते रहे। और मेरी दादी जी के पास, दादा तो नहीं रहे थे लेकिन मेरी दादी जी के पास वो पूरी जिंदगी आते रहे, और इतना सम्मान वो मेरी ग्रैंडमदर को देते थे। आप देखिए, ये भारतीय संस्कृति का भी एक एग्जाम्पल हमें पता चलता है। इतना सम्मान वो मेरी दादी जी को देते थे कि अगर दादी ऊपर बैठी हैं तो वो नीचे जमीन पर बैठते थे, वो ऊपर बैठते भी नहीं थे। उनका प्रमोशन भी हो गया था, बहुत हाई रैंकिंग ऑफिसर बन गए थे, बट थ्रू आउट हिज लाइफ ही had that kind of a respect for my family, for my grandfather, for my grandmother. तो ये एक बहुत ही मोटिवेशनल और एक ये मेरी एक ड्राइविंग फोर्स भी लाइफ में मुझे मिलती है कि नहीं, मैं अपने दादाजी की पोती हूँ, नहीं मैं डर नहीं सकती हूँ, नहीं मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरा देश है, जो मेरा कल्चर है, या जो मेरे कन्विक्शंस हैं, उनके लिए मुझे बिल्कुल जिंदगी के आखिरी सांस तक भी लड़ना है, और मरना भी पड़े तो मरना भी है, तो उससे भी कोई गुरेज नहीं है। तो उस तरह का एक ड्राइविंग फोर्स होती है। सो दैट इज डेफिनेटली देयर। और मेरे नाना जी भी लॉयर थे, क्रिमिनल लॉयर थे, मेरठ के, काफी रिनाउंड। हिज नेम वाज रिजवान जिया सिद्दीकी, और मेरे दादाजी का नाम तो आप बता ही चुके हैं, जियाउल्ला खान। और माय मदर इज आल्सो अ लॉयर, तो उस हिसाब से आई एम अ थर्ड जनरेशन लॉयर इन द फैमिली। तो ये तो डेफिनेटली है ही। प्लस पेरेंटिंग में मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे इंडोक्ट्रिनेट नहीं किया। जैसे कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम या फेथ को हम थोड़ी देर के लिए भूल भी जाते हैं। हम एज पेरेंट्स भी आजकल ये गलती करते हैं कि हम बच्चे को बचपन से क्या सोचना है ये बताते हैं। मैं अपने बच्चे को भी चाहती हूँ कि ऐसे रेस करूं कि उसको आप ये बताइए कि कैसे सोचना है, उसको ये मत बताइए कि क्या सोचना है। तो उस तरह से मैं, मतलब आई हैव बीन अ वेजिटेरियन, और मैं आश्रम्स जाती थी, भगवत गीता पढ़ती थी। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई बिकॉज मेरे परिवार ने मेरे माइंड को कभी बांधने की कोशिश नहीं करी। सो दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड। और अगर एज अ गर्ल चाइल्ड आप पूछें तो मुझे प्रिविलेज ही मिला है परिवार में, बिकॉज हम 3 भाई बहन हैं, मेरे 2 भाई हैं और मैं अकेली बहन हूँ। मेरा जो एक छोटा भाई है, ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। सेरेब्रल पाल्सी नाम से एक फिजिकल डिसेबिलिटी होती है जिसमें ब्रेन के कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं। सो माय यंगर ब्रदर कैन नॉट स्पीक, ही कैन नॉट वॉक। तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। बहुत कुछ उससे भी मैं सीखती हूँ। और मेरे बड़े भाई जो हैं वो CDA आर्मी में मेरे फादर थे, ही वॉज अ सीनियर ऑडिटर, मेरे पिताजी। तो उनकी डेथ के बाद वही नौकरी मेरे बड़े भाई को मिल गई थी। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मेरे बड़े भाई जॉब करते हैं, and my bhabhi is a homemaker. So this is my family background. Beautiful, wonderful. Now you are third generation lawyer, yeah. Come on, that sounds Yes. great. And we are talking. I never knew about it, and then I could see the police force and Jiala Khan साहब जहाँ पे भी है उनकी आत्मा को शांति दे। और वहाँ से आप इतना सीख के आए हैं। And you just see, you have a lot of following. People have joined. Aditya Gadial is a well-known name in UP.
अभी हम उनके साथ वो योगी जी से मिलने जा रहे हैं, काफी हम मूवी में काम कर रहे हैं. वेलकम आदित्य. I can see Bina Horaji joined from Thailand. She is on the next week's show. She is there. I can see JP Malhotra, the president of DLF Industries, has joined. I can see Cheryl has joined from Durban, and I can see there's a lot of Kashmiri Pandits. Bhavana Pandita, she is a very high level, volunteer in Trans Yamuna, and she did a lot of work during the this COVID days. And घर से खाना बना के लोगों को देती थी. She is already joined. I can see from Thailand, Usha has again joined from Thailand. I can see Shivani Singhal has joined. Cheryl has also joined. Sanchita Chatterjee, Pooja ji has joined. Pooja Mehta from JP Green. And Singapore se Rashmi has already joined. Oh, I can see Jennifer has joined from Malaysia, Kuala Lumpur. She's there. So you need to be speaking in English as well, because there'll be Hindi and there are some foreigners. I can see John is already there from Toronto. And from Toronto, even our friend Vidya Bhushandar. There are a lot of Kashmiri Pandits who are your followers. They have also joined a lot of Kashmiri Pandits. I can see Coles and Bucks and Kotwal is already there. Very wonderful. I think we are going fine. So, Vijay, my next question is, let me go to your studies as a lawyer. Now, professionally, as Supreme Court lawyer, how did you grow to this stage where you have got a lot of respectability for this? You may have certainly got a lot of hurdles, because being a woman, in any case in life, as a woman, there are challenges being faced. It's not only in India or Saudi Arabia and Afghanistan. Maybe Afghanistan will have more, because I do a lot of work in Afghanistan and other countries. But India is still much better than others. But even if you are in, US or you're in England, there will certainly be challenges. What kind of challenge did you face to become a lawyer, to be a successful lawyer? And as a women power, how did you mitigate those? There are issues in the community, in the society, at the professional level. Can you throw some light on your professional attributes with some hurdles, challenges, mitigating, but moving and making things to happen? Yes. Sure. It is a very good question, Bakshi ji, and I really want young lawyers to get to know these challenges and hurdles, because initially these things matter a lot. But over a period of time, जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, फिर आप जब when you look back, तब आपको लगता है कि वो छोटी चीजें थी and somehow उस वक्त हमें बड़ी लगती थी. तो young lawyers को मैं जरूर ये मैसेज देना चाहती हूँ, messages actually, because कुछ चीजें हैं जो मैं इस सवाल में कवर करना चाहूंगी. सबसे पहले तो अगर आप इतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, if you are not that fortunate or rich enough to take admission in a very elite law college, या आप किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से आपने वकालत नहीं करी है, तो you should not be disheartened at all, because सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली मैंने इतने वकील ऐसे देखे हैं जो मतलब एवरेज कॉलेजेस से भी पास आउट हैं, लेकिन अपना कन्विक्शन, उनका अपना जज्बा और वकालत प्रोफेशन के लिए उनका एक सम्मान और कितनी शिद्दत के साथ वो सक्सेस या अपना जो मिशन है वो अचीव करना चाहते हैं, वो चीजें मैटर करती हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ कि लॉयर्स आर नीदर मेड इन कॉलेजेस नॉर मेड जस्ट इन कोर्ट रूम्स. ये डेफिनेटली कॉलेज का एक थ्योरेटिकल जो एक एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, कोर्ट रूम का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी जरूरी है, लेकिन मेरा तजुर्बा ये रहा है कि जब तक आप समाज से नहीं जुड़ेंगे, until and unless you connect with society, with humans, जब तक आप जस्टिस का, न्याय का मतलब नहीं समझेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी ग्रेविटी, कि जो इंसान आपके हाथ में अपनी फाइल सौंप कर गया है, आप ये मानिए कि अपनी जिंदगी, the person is handing over his or her life to you. आपके लिए it is just a case, just a file, और उनके लिए उनकी जिंदगी का बहुत अहम कोई भी मैटर हो सकता है, उनकी पूरी लाइफ उस चीज पे डिपेंड करती है. तो मुझे लगता है कि एक वकील का सामाजिक होना
बहुत जरूरी है, सोशल होना बहुत जरूरी है, लोगों की परेशानियों को समझना, और ना ही सिर्फ समझना बल्कि उनको महसूस करना बहुत जरूरी है. दैट मेक्स यू अ सक्सेसफुल लॉयर. सक्सेस की सबकी अपनी अलग अलग परिभाषा होती है, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म. बट मेरे लिए सक्सेसफुल लॉयर होने का मतलब यही है, अगर आप समाज की जरूरतों के लिए अपनी वकालत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने देश की जरूरतों के लिए अपने वकालत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, या फिर ह्यूमैनिटी की जरूरत के लिए अपनी वकालत को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर इन माय पर्सपेक्टिव. और चैलेंजेस की बात अगर हम करें तो सबसे बड़ा चैलेंज था फियर का. क्योंकि व्हेन यू आर अ यंग लॉयर, व्हेन यू आर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट, तो सबसे पहला चैलेंज होता है ब्रेड एंड बटर का. इफ यू विल अटैच योर लॉ प्रैक्टिस विद ब्रेड एंड बटर, तो डेफिनेटली इट कम्स अलोंग विद एक अ सर्टन काइंड ऑफ अ फियर कि वेदर यू वुड बी एबल टू सस्टेन और नॉट, बिकॉज सोसाइटी में गुडविल बनने में टाइम लगता है, केसेस आने में, लोगों को आपको भरोसा होने में टाइम लगता है. तो सबसे पहले तो मैं बोलती हूँ कि फियर से प्लीज बाहर आ जाइए. मैं अपना पर्सनल हर्डल और एक्सपीरियंस दोनों बता रही हूँ कि मैं मीडियम क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी, और डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश में, मेरी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं छोड़ी. बट देन व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सो आई हैड टू मेक लेट इट हैपन ऑन माय ओन. तो उस तरह का फियर से मुझे बाहर आना था. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कोई लॉ फर्म ज्वाइन करूं, जो डेफिनेटली लुक्रेटिव ऑफर्स थे, इंटरनेशनल लॉ फर्म्स थी, बहुत अच्छे पैकेजेस होते थे, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि मैं इंडिपेंडेंट लॉ प्रैक्टिस करूं. तो दैट वाज अ टफ कॉल फॉर मी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ मिल रही है, तो व्हाई वुड यू चूज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस. बट देन मेरी बचपन से मेरा माइंड इस तरह का रहा है कि मैं अपने माइंड को बंधने नहीं देना चाहती. तो आई यूज टू थिंक कि अगर मैं, इफ आई विल जॉइन अ लॉ फर्म, तो वो अगर मुझे केसेस असाइन करेंगे, ऑब्वियसली वो मुझे केसेस की हियरिंग्स पर भेजेंगे, तो जो उनका पर्सपेक्टिव होगा मुझे वही लेना पड़ेगा. जो जो वो चाहेंगे मुझे वो कोर्ट रूम में जाके बोलना पड़ेगा, जो ना चाहते हैं मुझे देना पड़ेगा. मेरा माइंड यहाँ पे कहाँ काम करेगा. तो मैं वो 9 to 5 की जॉब से या किसी के पेरोल पे अपनी मानसिक स्वतंत्रता को बांधना नहीं चाहती थी. सो आई चोज इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस over joining a law firm, and over a period of time it turned out to be a great decision. तो यही मैं यंग लॉयर्स को भी सजेस्ट करती हूँ कि फियर से बाहर आके फैसला लीजिए. कोई भी आपकी जिंदगी का फैसला डर डिसाइड ना करे, Wow. तो आप बिल्कुल सही फैसला लेंगे. Wow. तो दैट इज वन हर्डल Wow. which What I what a overcame. message to young lawyers. Come out of the fair, become bold, take risks, and move forward. And she gave a live example of her life. No fear. And today she is well known. You just see, as I was telling you, there are a lot of Kashmiri Pandits following you. I can see, Mr. Mattu, the lead Mattu, the president of JK Vichar Manch already joined. JK Vichar Manch does a lot of great work. And उनके साथ Anjana Safaya, again a volunteer of JK Vichar Manch. I can see Ravi Saigal, the president of India Thai Chamber of Commerce, already joined. There's another Kashmiri, SK Kandru Sahab has already joined. And I can see Ishani has joined from Boston, and she's saying hello. I can see Melanie has joined from Spain, and I can see Sanchita has joined from Dubai. Wow, a lot of people are already saying hello and what a great girl. And somebody has written a comment also. I think Bhavna has written a comment. Encouraging, you are encouraging, ma'am. No, I think Sanchita, and Bhavna says, go ahead, girl, something like that. With that, let me hand over to my colleague, Varsha ji, for a question in Hindi. Varsha ji. Yes, sir. सुबीर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो पर. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तक हमने जाना आपने कैसे बचपन से लेके आपकी लॉयर तक की एक जर्नी अभी आपने हमारे दर्शकों को बताया. मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि आप एक सफल लॉयर हैं, उसके साथ साथ आप एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसी वजह से आप भिन्न भिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं. तो इसकी प्रेरणा आप कहाँ से मिलती है? प्रेरणा का एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है वर्षा जी.
प्रेरणा वाले सवाल पे आने से पहले एक्चुअली मैं यंग लॉयर्स को जो मैसेज दे रही थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया जो मैं बोलना बताइए। चाहती थी। वो मैं जरूर कवर करना चाहूंगी, स्पेशली भारतीय इंडियन यंग लॉयर्स को, यंग जो यूथ है भारत का, उनको मैं ये मैसेज जरूर देना चाहती हूँ कि एक दूसरा हर्डल यंग लॉयर्स को आता है, जुडिशरी को एकदम मिलॉर्ड्स मानने का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो एक कॉलोनियल एक माइंडसेट है और हम लोगों के दिमाग में बचपन से एक फियर इंसाइट किया जाता है। तो बहुत से मैंने ऐसे, इवन जो यंग इंटर्न्स मेरे पास आते हैं उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि आप कन्विंस्ड हैं, आपको अपना पूरा केस आपने पढ़ लिया है, यू शुड बी कन्विंस्ड एंड कन्विक्ट, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अबाउट द मेरिट्स ऑफ योर केस। उसके बाद आपको अंडर कॉन्फिडेंट किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। जो भी आपके देश का एक लीगल सिस्टम है, यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट का डेफिनेट, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी भी जज को माय लॉर्ड नहीं बोला। मैं उनको योर ऑनर बोलती हूँ, उनको सम्मान देती हूँ, बट लॉर्ड मेरी नजर में वो पर, तो डेफिनेटली इंसान के अंदर परमेश्वर बसते हैं, उसको मैं मानती हूँ, बट लार्जर देन लाइफ में कभी किसी इंसान को, किसी अथॉरिटी को नहीं मानती। तो ये एडवाइस मैं एक फियरलेसनेस का भी यंग जनरेशन को देना चाहती हूँ। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ऑफ इंस्पिरेशन जो आपने मुझसे पूछा, बहुत सारे लोगों से मुझे जिंदगी में इंस्पिरेशन मिली है। इंसानों के ऊपर आने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा जो मुझे एकदम बोलते हैं ना कि मैं एकदम अलाइव हो जाती हूँ उसको सोच के, उसको इमेजिन करके, या बचपन से जो मुझे लगता है कि उस चीज को इमेजिन करके मैं एकदम चार्ज अप हो जाती हूँ, दैट इज दो अल्फाज हैं, दो वर्ड्स हैं, ट्रुथ एंड जस्टिस। ये दो चीजें मुझे लगता है कि किसी भी सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन में मुझे लगे कि मैं सच बोल रही हूँ, या मैं कई बार परिवार में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि 2-3 लोग इन्वॉल्व हैं और वहां पे कुछ ऐसा सीन हो गया जो आपने विटनेस किया, एंड देन आप बच्चे हैं तो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई। एक्सटेंडेड फैमिली की बात कर रही हूँ। तो 5-6 बच्चों में आई वॉज द ओनली चाइल्ड हु स्टूड अप एंड हु सेड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड आई सेड कि नहीं नहीं ये हुआ था, जिसमें मुझे फेस भी करना पड़ा कॉन्सिक्वेंसेस, डांट भी पड़ी, बहुत कुछ, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं नहीं जो हुआ था मैं तो वही बोलूंगी। तो ये कुछ, ये कुछ है कि ट्रूथ एंड जस्टिस मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन देता है। मुझे लगता है कि अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, इंसाफ के साथ खड़े हैं, तो आपको और किसी उससे ज्यादा इंस्पायर करने वाली कोई चीज शायद नहीं हो सकती है। और अगर लिविंग लोगों की बात करी जाए तो मैं अपने इमीडिएट जो मेरे क्लोज अफिनिटी में लोग हैं उनके एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगी। अपनी मॉम से मैं ये इंस्पिरेशन लेती हूँ कि शी इज अ केयर फ्री काइंड ऑफ अ वुमन, कि उनको अगर आज की, शी इज ऑलमोस्ट 60 years old, अगर उनको शॉकिंग पिंक कलर का गाउन पहनना है तो शी वुड वेयर इट, शी वुड नॉट केयर कि लोग क्या कहेंगे, शी वुड नॉट केयर कि मैं कैसी लग रही हूँ या कोई मुझे कैसे, इफ शी इज लाइकिंग इट शी वुड वेयर इट। सो शी हैज दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इवन टुडे। और 4 लोग क्या कहेंगे वो वाली मानसिकता कभी भी एटलीस्ट मैंने अपनी माता जी के मुंह से नहीं सुनी। एंड अपने फादर से मुझे इंस्पिरेशन मिली है सेल्फलेस गिविंग की। मैं उनको गृहस्थ आश्रम में एक संत की तरह मैंने उनको देखा है। ही हैज बीन अ सेंट एंड बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशंस ऑफ माय लाइफ। देन अपने हस्बैंड से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है चीजों को छोड़ने की, चीजों को लेट गो करने की। ही डजंट होल्ड ऑन टू थिंग्स और यू नो पीपल और सिचुएशंस। और यही कारण है कि शायद मैं इतना, जिस तरह की मेरी प्रोफाइल है, जिस तरह का मेरा काम है, बहुत रिस्क से भी कई बार रूबरू होना पड़ता है, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं लाइफ में, बट आई एम एबल टू डू इट बिकॉज माय हस्बैंड लेट्स मी गो and you know achieve my goals, and definitely he's one of my gurus also, मुझे पढ़ाते भी हैं, he's one of my teachers, so obviously a strong inspiration in my life. Then मेरा छोटा भाई जो मैंने आपको बोला कि my younger brother who's a special child, वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन आप म्यूजिक चला दीजिए तो अगर उसका सिर्फ शोल्डर भी मूव कर रहा है तो ही वुड ट्राई टू डांस। तो वो इंस्पिरेशन मुझे अपने छोटे भाई से भी मिलती है कि जो बिग, यू शुड नेवर गिव अप इन लाइफ, आपके पास जो कुछ भी है उसी को लेकर आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं मेरे
प्रेरणा, एक बहुत इंस्पिरेशन के पीछे एक, आई एम श्योर, एक बहुत बड़े प्रेरणा पुरुष हैं। आप भी शायद, जो लोग सुन रहे हैं, बहुत लोग जानते होंगे, माननीय KN गोविंदाचार्य जी। उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है लाइफ में, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्विकली 3-4 चीजें तो मैं उनकी जरूर बताऊंगी जो मुझे उनसे सीखने को मिली। उनसे मैंने एक दिन पूछा कि गोविंद जी, सनातन संस्कृति को हम, सनातन धर्म को हम एक लाइन में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ही सेड, या भारतीय संस्कृति को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ही सेड, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान, दैट इज भारतीय संस्कृति। तो आई लव दिस स्टेटमेंट। और ये मेरे बहुत सारे जो सोशल प्रोजेक्ट्स हैं उसके पीछे ये एक विजन मेरा रहता है, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। देन एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि भारत में 3 तरह के लोग हैं, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय और देशद्रोही। कुछ लोग नेशनलिस्ट हैं जो बिल्कुल भारत की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, भारत के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। कुछ लोग देशद्रोही हैं, वो जानते बूझते भारत का नुकसान चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी भारत में अराष्ट्रीय है, दैट मीन्स द क्लूलेस मेजॉरिटी। तो हम सिर्फ राष्ट्रवादी और देशद्रोही में नहीं बांट सकते हैं, बीच की एक बहुत बड़ा तबका है क्लूलेस मेजॉरिटी। आपको उन्हें कन्विंस करके राष्ट्रवादी बनाना है। तो ये एक, दिस इज अनदर थिंग विच एड्स ऑन टू माय विजन, जिसकी तरफ मैं काम कर रही हूँ। देन एक गोविंद जी का एक सिद्धांत है, प्रकृति केंद्रित सिद्धांत। नेचर सेंट्रिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं कि हम जब हम प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो कोई ब्लैक व्हाइट का स्ट्रगल, कोई कास्ट का स्ट्रगल, कोई पंथ समुदायों का सारा स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा इफ वी आर कनेक्टेड टू द नेचर। और एक चीज उन्होंने मुझे और बहुत अच्छी बताई थी, आई वुड लाइक टू टेल और शेयर रादर इन दिस इंटरेक्शन। उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग राजसत्ता पे बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाते हैं, दैट मीन्स पॉलिटिक्स जो पूरा एक जो भी सिस्टम चल रहा है उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले होती है धर्म सत्ता, उसके बाद होती है समाज सत्ता, उसके बाद होती है राज सत्ता, उसके बाद होती है अर्थ सत्ता। तो इस तरह की पूरा सीक्वेंस में रैंकिंग में उन्होंने बताया कि समाज सत्ता जो है वो राज सत्ता से भी बड़ी चीज है। तो इस तरह की मार्वलस या वैल्यूएबल या प्राइसलेस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज मुझे माननीय KN गोविंदाचार्य जी से मिलते हैं। सो दैट इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशंस। और जो अपने शारीरिक रूप में नहीं है, ऐसे लोगों में मैं स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना पसंद करती हूँ। और सुभाष चंद्र बोस जी इज ऑल्सो वन ऑफ माई इंस्पिरेशंस, मेरे प्रेरणा पुरुष हैं। तो ये मेरी प्रेरणा है। अगर आप बोले, अगर कुछ भूल भी गई हूं तो माफी चाहती हूँ अगर किसी का नाम, बिकॉज मैं जिससे भी मिलती हूँ हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। और प्रेरणा में मैंने एक चीज सत्य और न्याय, ट्रूथ एंड जस्टिस बोला था, उसमें मैं यंग जनरेशन के लिए एक और टिप देना चाहती हूँ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों का जो परसेप्शन है, चीजों को परसीव करने की जो रैशनैलिटी है, वो बहुत डिस्टॉर्ट कर दी गई है। तो हम लोग कई बार सिचुएशन में ट्रूथ देख नहीं पाते हैं। उसका भी मुझे सूत्र वेदांत से मिला। वेदांत में एक प्रिंसिपल है साक्षी भाव। आप किसी भी सिचुएशन को थर्ड पार्टी की तरह देखिए। अगर मैं भारत में जो इस्लामिक स्टेट बनाने की एक मानसिकता काम कर रही है, उसको एक मुसलमान बन के देखूंगी तो मैं कभी भी सच नहीं देख पाऊंगी, मैं हमेशा ऑफेंड हो जाऊंगी। तो किसी भी सिचुएशन को साक्षी भाव से देखिए। डू नॉट गेट इन्वॉल्व विद द सिचुएशन। आप ये समझिए कि आप दूर हैं, आपके सामने घटनाक्रम हो रहा है, तो आप चीजों को बिल्कुल क्लियरली पानी की तरह साफ और शफाफ देख पाएंगे और सत्य और न्याय का साथ दे पाएंगे। सो दिस इज अनदर टिप आई वांट टू गिव टू द यूथ, टू स्टैंड बाय ट्रूथ एंड जस्टिस। बहुत ही अच्छी बात कही आपने सत्य और न्याय की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम बख्शी सर, ओवर टू यू सर। बहुत I'm really flabbergasted by your responses to these questions, and especially when you talk about truth and justice. And भारत का, इंडिया का, our संस्कृति रही है ट्रूथ एंड जस्टिस की। हमारी संस्कृति तो thousands of years back. And I can see more and more people are actually putting their thoughts here, and they are saying this. Subbu, he is talking something which others should learn from it. And now, in the meanwhile, we got more people joined
Oh, Deepak Saxena has joined from Vancouver. Ashok Bakshi has joined from London. And we got Reva. Reva has joined from Germany. So people are saying that whatever Subhuji is talking is making great sense. Great to see her on such show. And somebody is writing that these are patriotic roots, what she is talking. मजा आ रहा है आपके साथ सुबुई जी. It's really enjoying. My next question to you is, Thank you so much. you are an absolute impacting personality, driving your life with a power of positivity, personally and professionally. Especially when I see the other side, other style of yours, than a lawyer. That's where I need to know why are you different. Because when you talk as a Muslim woman in the country, you talk about Hindu Rashtra, you talk about Bharat Mata Ki Jai, you talk about Bhagavad Gita, you spread about positivity about yoga, and you talk about Vivekananda, and you talk about all the saints. How come? Why are you different? What is that makes we Khan to be different? Because when you see other side, people are actually very negative about Bharat Mata Ki Jai. I want to tell you, when I was last time in Jammu University, Central University, and we were doing this leadership congress, and being a Kashmiri Pandit, so I had a lot of Muslim girls coming from Kashmir to be on that show, and the Minister of Education was there, Mr. Naeem Akhtar, and another Priya Sethi, Minister of Tourism. That time was PDP BJP Sarkar in J&K. I used to say, "Arey Rahman bhai, tum bologe Bharat Mata ki Jai. Vande Mataram, Vande Mataram." Everybody got exchanged, and the minister even commented to me, "Arey कमाल है, आप तो इनको सबको भारत माता की जय बोले पे छा गए हो." What I am trying to say, I being a Hindu, but you being a Muslim, talking about Hindu Rashtra, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Narendra Modi ki Jai, or Bhagavad Gitas and yogas. Why are you different, Subui? What makes you to be different? I need to know about this. That's the power of positivity, and you are spreading it. देखिए, आज आपका जो योगदान है, अगर आप हमारे यंगिस्तान में, जिसको मैं यंगिस्तान बोलता हूँ, यंगिस्तान में डीएनए में डालने की कोशिश करेंगे, इंडिया विल सर्टेनली बी द सुपर पावर. क्यों है आप डिफरेंट? Absolutely, Bakshi ji. मुझे लगता है India has always been a superpower because of the national ethos that we have, and India is still a superpower. India will be a superpower. It's just that we have to realize it. हमें उसको, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अचीव करनी है. वो ऐसा नहीं है कि कहीं लुप्त हो गई है, वो सिर्फ कहीं दबी हुई है. हमें सिर्फ उसके ऊपर से धूल साफ करनी है, उसको सिर्फ रियलाइज करना है. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई से अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट आल्सो. इट इज नथिंग दैट वी हैव टू अचीव, इट इज समथिंग दैट वी हैव टू रियलाइज एंड जस्ट फाइंड आउट. वो हम कहीं रख के भूल गए हैं. वही मैं भारत के बारे में बात करती हूँ. आपने मुझसे पूछा कि मैं ऐसी क्यों हूँ. Why am I different when I talk about yoga, when I talk about Hindu Rashtra, or when I talk about Bhagavad Gita? तो इसका जवाब मैं दो तरह से दे पाऊंगी, तभी मैं जस्टिस कर पाऊंगी इस सवाल के साथ. एक, इसको जवाब देने का एक तार्किक तरीका है जो मेरा तर्क है, और एक है इंट्यूशन. तो देखिए, इंट्यूटिवली मुझे लगता है कि ये मेरा कोई प्रारब्ध है, बिकॉज आई बिलीव इन रीइंकार्नेशन, आई बिलीव इन कैरिंग ऑन द कार्मिक डेट. कुछ मेरा इस धरती से कुछ पुराना जुड़ाव है, कुछ पुराने जन्मों में भी मैं इस धरती में पैदा हुई होंगी. कुछ डेट है जो मुझे चुकाना है इस धरती का या ह्यूमैनिटी का. दैट्स व्हाट आई बिलीव. मे बी दिस इज व्हाई आई एम डिफरेंट, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लाइफ में जो मैंने कॉन्शियसली नहीं करी. जैसे वेजिटेरियन मैं कॉन्शियसली नहीं बनी. मेरी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती चली गई. एंड बीइंग अ मुस्लिम, आई बिलीव इन रीइंकार्नेशन ऑल्सो. और जो मुस्लिम मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूंगी, इवन इन कुरान देयर इज अ वर्स जो ये कहती है कि हमने तुम्हारे अंदर जान डाली,
फिर तुम लौट के हमारे पास आओगे, फिर हम दोबारा तुम्हें धरती पर भेजेंगे, फिर तुम लौट के हमारे पास आओगे। तो ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ जो है, जिसको मौलानाज एंड मुल्लाज कंप्लीटली रिफ्यूज कर देते हैं, या नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इस तरह की बात कर देते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो आपको आपका माइंड कंट्रोल डर के बेस पे करना चाहते हैं कि आपको एक ही जिंदगी मिली है, अगर इस जिंदगी में आप कुछ गुनाह करेंगे तो आप मरने के बाद दोजक में गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह तले जाएंगे, आपकी गर्दन में सांप चलेंगे। इस तरह से एक मुसलमान बच्चे को वो डरा कर रखते हैं। जब एक बच्चा डर के रहेगा तो आपका कंप्लीट माइंड कंट्रोल होगा उसके ऊपर। दिस इज द रीजन वाई दे गिव यू फतवाज, दिस इज द रीजन वाई दे गिव यू डूज एंड डोंट्स, हराम हलाल की लिस्ट देते रहेंगे कि आपका माइंड फ्री ना हो पाए। जब आप डरे रहेंगे तो जो वो कहेंगे वो आपसे करेंगे। वो इस्लाम को सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह, एक इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे वांट ज़ॉम्बीज, रोबोट्स फॉर दैट। दे डू नॉट वांट फ्री माइंड्स, रैशनल माइंड्स फॉर इट। इस कारण एक मुसलमान बच्चे को डराया जाता है। और जिस दिन आपने पुनर्जन्म को मान लिया, उस दिन आप ये समझ जाएंगे कि अगर मुझसे इस जीवन में कोई गुनाह हो भी गया तो मुझे अगला जीवन मिलेगा उसको क्लियर करने के लिए। अपना अच्छा या बुरा का जो भी हिसाब किताब है वो मुझे बार बार क्लियर करने के लिए भगवान मौका देगा। द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल बोलते हैं हम अल्लाह को, जिसने हमें बनाया है। वो इतना निर्दयी नहीं हो सकता कि एक जीवन में हमसे कोई गुनाह हो जाए तो वो हमेशा दोजख में डाल के हमें भूल जाएगा। तो ये लाइफ एंड डेथ की साइकिल में मैं बिलीव करती हूँ। ये तो मेरा इंट्यूशन मुझे कहती है, जिस कारण मुझे लगता है कि आई एम डिफरेंट। बाकी मैं तार्किक भी बोलना चाहती हूँ कि देखिए भगवत गीता, कोई भी अगर बीइंग अ मुस्लिम, आई वुड आस्क अ मुसलमान कि व्हाई वुड यू गेट ऑफेंडेड इन रीडिंग और एक्सेप्टिंग और प्रैक्टिसिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता किसी एक पूजा पद्धति की बात तो करती नहीं, भगवत गीता किसी एक भगवान की तो बात करती नहीं, किसी एक फॉर्म की तो बात करती नहीं। भगवत गीता चारित्रिक निर्माण की बात करती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करती है, आपको लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना है उसकी बात करती है, कर्म की बात करती है। तो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट भगवत गीता एज योर्स? आपका मुसलमान होना भगवत गीता को अपना मानने में कहाँ आड़े आ रहा है? ये सवाल मैं मुस्लिम समाज से भी करती हूँ। देन व्हेन यू टॉक अबाउट योगा, तो योग देखिए मन, शरीर और आत्मा को जोड़ने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। बॉडी, माइंड एंड सोल, दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास बॉडी, माइंड एंड सोल नहीं है? सो व्हाई डोंट यू फील कनेक्टेड टू योग? आप योग को भी सोचते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों का नहीं है, किसी और का है। ये सब मुल्ला मौलाना मुसलमान बच्चों को रैशनैलिटी से और जिंदगी जीने से दूर रखते हैं। म्यूजिक सुनना सोचिए मुसलमान बच्चों के लिए हराम है, ड्राइंग करना, डांस करना मुसलमान बच्चे के लिए हराम है। कोई भी चीज जो आपको दुनिया से जोड़ दे वो आपके लिए हराम है। ये मैसेज मैं मुस्लिम यूथ को भी देना चाहती हूँ। सिर्फ इसलिए कि उनको आपको अग्रेसिव रखना है, फ्रस्ट्रेटेड रखना है, तभी तो आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारेंगे, काटेंगे, इस्लामिक स्टेट के डिमांड करेंगे। अगर आप खुश हो गए, आप सबसे मिल गए, सबके दोस्त बन गए, तो उनका इस्लामिक स्टेट का एजेंडा फेल हो जाएगा। देन तो यही मैं बोलती हूँ कि देखिए भगवत गीता हो या योग हो, मुसलमानों को अपने आप को उससे अलग महसूस नहीं करना चाहिए। देन योग के 8 लिम्स ऑफ योग मैं क्विकली बोलना चाहूंगी। देखिए यम, दैट मीन्स शपथ लेना। 8 लिम्स ऑफ योग, अष्टांग योग जिसको बोलते हैं, वो 8 होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एंड समाधि। यम मीन्स शपथ लेना, एब्स्टिनेंस, कि भाई मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगी, रिस्ट्रेन किसी भी गलत एक्टिविटी से। नियम मीन्स आत्म अनुशासन, किसी भी तरह का एक डिसिप्लिन लाइफ में। देन आसन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल पोस्चर्स। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राण, एक प्राणिक एनर्जी हर इंसान के अंदर है। देन प्रत्याहार, दैट मीन्स इंद्रियों पे नियंत्रण। इस्लामिक प्रैक्टिसेस में उसको नफ्स पे कंट्रोल कहा जाता है, नफ्स पे कंट्रोल करना, इंद्रियों पे नियंत्रण करना। देन धारण इज एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। देन ध्यान इज मेडिटेशन एंड समाधि इज मुक्ति। सो हाउ बीइंग अ मुस्लिम इज सच अ डिफिकल्ट थिंग कि आप योग को नहीं अपना पा रहे हैं सोच के कि ये मुसलमानों का नहीं है। तो ये मैं कुछ तर्क पे जब सवाल करती हूँ तो उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत माता की जय। ये मेरे बहुत दिल के करीबी ये एक कॉन्सेप्ट है कि भारत जो एक नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की तरह नहीं है। हमारे लिए भारत की जो एक माता की एक फिगर है, जो एक इमेज है, उसका मतलब है कि भारत की हर स्टेट, भारत हमारे लिए एक ज्योग्राफिकल पीस ऑफ लैंड नहीं है।
उसकी हर स्टेट हमारे भारत माता के अंग है। जब हम उसको एक ह्यूमन फिगर में, एक माँ की फिगर में इमेजिन करेंगे, तो हम उसकी जल, जंगल, जमीन, जीव, हर किसी का सम्मान करेंगे। हम नदियों को माता बोलते थे, तो जब जब तक हम नदियों को माता मानते हैं, हम नदियों को पॉल्यूट नहीं करते थे, हम उनमें कूड़ा नहीं डालते थे। तो भारत माता की जय एक बहुत लॉजिकल चीज है, आपको प्रकृति से जोड़ने का, आपको अपनी कंट्री से जोड़ने का, जो आपकी कंट्री की बहुत सारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगा। जिस दिन आप दिल से भारत माता की जय बोलने लगे, उस दिन आप ओवर पॉपुलेट नहीं करेंगे अपने देश को, उस दिन आप अपने देश में अपराध नहीं करेंगे, उस दिन आप अपने देश की तरफ एंटी नेशनल फोर्सेस को देखने नहीं देंगे, आप अपने देश को पोल्यूट नहीं करेंगे। देश की सारी समस्याओं का समाधान है कि भारत माता की जय सिर्फ बोलना ही नहीं है, भारत को माता समझना भी है। Beautiful as you are, Subhuji. Very interesting discussions are going on, ladies and gentlemen. Those who are watching now and those who will be watching it later, what an interesting discussion with a super women power who has significantly contributed in visioning India and taking vision forward. And there are a lot of good comments coming in. And Nidhi is saying what a level of knowledge, Gita, yoga, Hinduism she has got. In fact, in the meanwhile, Gunjan Raina, Kamal Haq Sahib has joined, Shripa Banerjee has joined, Reema Nakra has joined, Mauri Dayas has joined, Shruti has joined from Washington, Dr. Gupta has also joined from Washington. It's an outstanding clarity what she is giving. Shivani Singhal is saying, Aditya Gadjal is giving big cheers and saying what a great show. And Ravi Saigal, our India Thai Chamber of Commerce president, is saying what a great, excellent opportunity of listening. And Beena is saying, love your mindset. How can the mindset of young generation be changed? We go to the questions later. Subhuji, Bharat Desh theek hai, everything is okay. We say that Muslims are in minority in India, and Muslims always complain we are not being treated properly. Agar you take any decision about anything, oh, you cannot do it. While as in Saudi Arabia, you can say you cannot go beyond this azan, itni awaaz nahi ho sakti hai, kuch nahi hota. In Australia, even the Muslim Maulvis come out, yes, we need not to spend so much of money on mosques, we should build hospitals, we should build schools. Even Maulvis and Maulanas themselves come within Australia. And in Pakistan and in China, you know what they do to minorities, especially in China with Muslims, what they do. I don't know how Imran Khan is quiet on that. He never makes any statement. Sorry to say, Mr. Imran Khan, the president of Pakistan, he never talks about how Muslims are being, they are not even allowed to have namaz in China because he sold his country to China, in other words. In India, there's total respect to women, chahe gas connection hai, chahe toilets hai, chahe Aadhaar card hai, chahe koi bhi, any facility is given to human being, whether you are Muslim, Sikh, Isai, Hindu, it doesn't matter. Narendra Modi does not think that I am going to give gas ka chula or I am going to build houses for only Hindus. It doesn't work in this country. Absolutely. Why I say this, and even then, minorities feel upset, and the Tukde gang starts creating hell. What is your point on this? How do you see this getting diminished? Why don't these Maulanas, Maulvis, and who are at the helm of affairs, there are some very good Muslim leaders whom I watch, and they talk about very positive things. But why is a normal Muslim talking about negativity about it? To answer this question, first of all, I have a counter question. How do you define the term minority? माइनॉरिटी को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? आप अगर इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम्स, आप आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ मुसलमान है भारत में.
आप यूनाइटेड नेशन की कोई डेफिनेशन है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, किसी भी पर्सपेक्टिव से, किसी भी परिभाषा से आप ये बता दीजिए कि 35 करोड़ लोग माइनॉरिटी होते हैं। मुस्लिम्स आर नो मोर माइनॉरिटी इन इंडिया। सबसे पहले तो हमें ये क्लैरिटी लानी चाहिए। माइनॉरिटी इज नॉट अ स्टेटस एनी मोर, इट इज जस्ट अ कार्ड which is being used to manipulate Muslims, to blackmail Muslims, and use Muslims against their own motherland. Oh. Minority is just a victim card. और minorities है हमारे देश में जैन, सिख, क्रिश्चियंस, बौद्ध, पारसीज, ये minorities हैं आज के टाइम में। अगर आप नंबर्स के हिसाब से, कश्मीरी पंडित कश्मीर में minorities, very small population. मैं तो कश्मीरी पंडित भी नहीं बोलती हूँ बख्शी जी, मैं तो कश्मीरी हिंदूज बोलती हूँ। और उस क्वेश्चन पे आई थिंक वी वुड रादर टॉक। मुझे लगता है कि उन्हें तो बिल्कुल अपने अधिकार, अपने हक के साथ बात करनी चाहिए। और वो दे आर पार्ट ऑफ भारत एज वी आर, जैसे हम सब लोग हैं। और अपने ही देश में उनको रेफ्यूजी स्टेटस की तरह बहुत जगह रहना पड़ रहा है। बहुत दुखद बात है। मुझे लगता है कि उनको इतना सम्मान मिलना चाहिए, एग्जैक्टली, कि उनके बारे में हम बिल्कुल अलग से बात करेंगे। दे डिजर्व दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट। तो कमिंग बैक टू द माइनॉरिटी, ये द क्वेश्चन, तो मैं ये बोलूंगी कि और दूसरे माइनॉरिटीज हैं भारत में। आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि कोई जैन या बौद्ध या पारसी आगे आके बोलते हैं कि नहीं भारत में हमारे साथ बुरा हो रहा है। आप हमेशा मुसलमान से ही क्यों सुनेंगे? उसके पीछे कारण है कि इस्लामिक स्टेट जो है, पाकिस्तान बनने पे इस्लामिक स्टेट खत्म नहीं हो गया। इस्लामिक स्टेट की एक वैचारिक अनुकूलता, यानी कि उसकी तरफ एक इंक्लिनेशन, एक दिमागी तौर पे, मानसिक तौर पे भारत में आज भी चल रहा है, जिसको दो पावर्स मेनली फ्यूल कर रही हैं। एक तो मौलानावाद उनको फ्यूल कर रहा है, जिनको इस्लामिक स्टेट बनानी है पूरी दुनिया में। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद उन्होंने इस्लाम को एक पॉलिटिकल एजेंडा की तरह इस्तेमाल किया और उनको पूरे विश्व में सिर्फ इस्लाम का परचम फहराना है। तो वो तभी फहरा सकते हैं जब आपसे वो इस्लामिक स्टेट की लड़ाई लड़वाएं। आप लड़ेंगे तभी जब वो आपको ये बोलें कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तुम इस देश में सुरक्षित नहीं हो, तुम इस देश में खुश नहीं हो, अपने लिए अलग जमीन की, अलग लैंड की डिमांड करो। इस कारण भी एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है मौलानाओं के और कट्टरवादियों के द्वारा कि मुसलमान माइनॉरिटी है और भारत में पीड़ित है। दूसरा, ये नैरेटिव क्रिएट कराया जाता है राजसत्ता द्वारा, यानी कि कुछ हमारे देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके लिए मुसलमान सिर्फ एक वोट बैंक है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स उनको वोट देता रहे, उसके लिए वो ब्लैकमेल करते हैं, उनको भड़काते हैं देश के खिलाफ कि भारत में तुम सुरक्षित नहीं हो, या फिर XYZ पॉलिटिकल पार्टी के राज में तुम सुरक्षित नहीं हो, तो तुम हमें वोट देते रहो तो हम तुम्हें बचा के रखेंगे। यू नीड अस टू प्रोटेक्ट यू इन योर ओन कंट्री। इस टाइप का नैरेटिव ये धर्म सत्ता और राजसत्ता वाले लोग चलाते हैं। तो मैं मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप नंबर से माइनॉरिटीज नहीं है। दूसरा, कभी भी आपको कोई अगर ये कहे कि भारत में आपके साथ बुरा होता है तो प्लीज इस्लामिक हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, भारत की हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए। मदीना के बाद पहली मस्जिद भारत में बनी है। हिंदू राजा ने अपनी जमीन दान दे के भारत में वो मस्जिद बनाई है। लाखों की तादाद में भारत में मस्जिदें आज भी सम्मान से खड़ी हैं। जब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे कट्टरवादी, अयोध्या में श्री राम मंदिर का जो प्रिमाइस है उससे जस्ट 2 किलोमीटर की दूर नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह है। मैं वहां खुद गई हूँ बख्शी जी। वो जस्ट 2 किलोमीटर के दूर वो दरगाह है। वहां पे बुरके में औरतें जाती हैं, दरगाह में अगरबत्ती जलाती हैं। सोचिए, उसी अयोध्या में जो 500 साल से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे 2 किलोमीटर दूर नूह अलैहिस्सलाम की दरगाह शान से आज भी खड़ी है। अब वहां ना जाने से आपको हिंदू रोक रहे हैं, ना अगरबत्ती जलाने से, ना आपको इबादत करने से कोई रोक रहा है। तो आप कैसे ये नैरेटिव क्रिएट करते हैं? और राम मंदिर के खिलाफ डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मौलाना अयोध्या में जा जाके डिबेट्स करते हैं, स्टेजेस बनता है। मैंने तो एक डिबेट में एक मौलाना साहब को बोल दिया था कि आप अयोध्या में खड़े होकर राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं और यहाँ से सही सलामत वापस जाएंगे, ये है भारत। तो बेवकूफ मत बनाइए भारत की जनता को, बेवकूफ मत बनाइए मुसलमानों को। तो ये मैं मुस्लिम्स को बोलना चाहती हूँ। हजरत अली के हाथ की लिखी हुई कुरान की मैन्युस्क्रिप्ट आज भी कहते हैं कि रामपुर की रजा लाइब्रेरी में सुरक्षित है। भारत में इस्लाम को टॉलरेट नहीं किया गया है, सेलिब्रेट किया गया है। भारत ने हर पंथ को उत्सव की तरह मनाया है। दिस इज व्हाट भारत इज।
मैं कुंभ गई थी, मैं एक एग्जांपल और देना चाहती हूँ। मैं कुंभ गई थी अभी लास्ट जो हुआ था, तो वहां पर ये हरिद्वार में जो हुआ था उसकी बात नहीं कर रही हूँ, जो प्रयागराज में हुआ था आई थिंक 2019 में। तो वहां पर जाकर मेरे मन में सवाल आया कि कुंभ क्यों मनाते हैं, कुंभ क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे वहां पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा ने जब पृथ्वी की रचना की थी, व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, उस चीज का हम उत्सव मनाते हैं, कुंभ सेलिब्रेट करते हैं। तो आई वाज लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज्ड एंड आई वाज सो ग्लैड एंड इलेटेड टू नो कि वी सेलिब्रेट क्रिएशन। और जो इब्राहिमिक रिलीजन्स होते हैं उनमें क्रिएशन को, कि आदम हवा को या एडम या ईव को धरती पे एज अ पनिशमेंट भेजा गया था। तो मतलब क्रिएशन भी आपके लिए पनिशमेंट है। आप जो मानव की उत्पत्ति को एक सजा से शुरू कर रहे हैं, इतना डरा के आप रखना चाहते हैं ह्यूमन स्पेशीज को, तो वो कैसे खुश रह सकता है? वो हमेशा या तो डरा हुआ रहेगा या हमेशा लोगों से लड़ता हुआ रहेगा। तो इस तरह से मैं भारतीय संस्कृति के बहुत सारे ऐसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं, जो टाइम कम पड़ जाएगा, मैं आपको देना चाहती हूँ कि दिस इज व्हाई आई फील सो कनेक्टेड टू सनातन धर्म, कि इट इज सो लॉजिकल एंड इट इज सो फ्लेक्सिबल, और जो देश काल परिस्थिति के हिसाब से हर कंट्री के ऊपर अप्लाई करता है, हर टाइम पीरियड के ऊपर अप्लाई करता है, और आप किसी भी कालखंड में उसको अप्लाई करके उस कालखंड के हिसाब से जिंदगी जी सकते हैं स्वतंत्रता के साथ। सो दिस इज व्हाट भारत इज। एक और मैं ज्यूस का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि ज्यूस का पूरी दुनिया में परसिक्यूशन हुआ था, पूरी दुनिया में ज्यूस परसिक्यूट हुए थे, और फाइनली जब वो बचते बचाते पहुंचे, उन्होंने इजराइल में अपनी एक कंट्री में जब उनको से सम्मान रहने का मौका मिला, उन्होंने अपने पार्लियामेंट के फर्स्ट सेशन में बोला कि ज्यूज वर परसिक्यूटेड इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बट भारत। यही कारण है कि आज हमारे इजराइल से इतने अच्छे संबंध है, यही कारण है कि ज्यूज बहुत सम्मान करते हैं भारत का और भारतीय संस्कृति का, क्योंकि किसी को भी परसिक्यूट करने की हमारी मानसिकता ही नहीं है। जो वसुदैव कुटुंबकम का हम कहते हैं, पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं, वो ऐसे ही नहीं है, वो सिर्फ थियोरेटिकली नहीं है, वो हम प्रैक्टिस में मानते हैं। सो दिस इज व्हाट भारत इज। तो प्लीज ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना ये लोग बंद करें। और मुझे लगता है कि भारत का मुसलमान भी जाग रहा है। मैं मानती हूँ कि जिस तरह से इंसानों का टाइम होता है, कुंडली होती है, ऐसे देश की भी कुंडली होती है। सो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर भारत, and an absolute beautiful cultural renaissance is going on, and I'm glad to be a part of it, कि मेरे देश के एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जो भी थोड़ा बहुत योगदान मैं दे पा रही हूँ, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ, and I will continue to do that. Powerful, very powerful and very meaningful. In fact, Khandru Sahab कहते हैं it's a revolutionary of truth. What this real gem Subbu is talking Thank about. you so much. In fact, Dr. Ibrahim from Abu Dhabi is saying, DK, I agree each word with Subbu. He is also a very great promoter. Aditya Gill says it's highly informative for the youths to take it forward. Very wonderful. And I think, ladies and gentlemen, keep watching this hashtag Women Power, a global movement. And today you can see how this super duper powerful woman of our country from a small Meerut making a big name, not only in the country, globally. In fact, there's already 2 invitations you got from my Thailand. So whenever Sky opens, you need to be with us in Bangkok and have a show on India Thai Chamber of Commerce, Indian Association of Thailand. Papadi Seth is also there. He is our Secretary General of my Indian Association of Thailand. And President is already there from India Thai Chamber of Commerce. Varsha ji, next. Yes, sir. सुबुई जी, अभी आपने बहुत अच्छे से बताया भारत देश के बारे में कि क्या धर्म है, क्या कंसेप्ट्स हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति इतनी गलत धारणा क्यों है एनआरसी को लेकर, और मतलब अलग अलग टूल किट बनाए जाते हैं उसको प्रूव करने के लिए, इसके प्रति आपका क्या विचार है? बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है वर्षा जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि देश में प्रधानमंत्री कोई पहली बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि देश में संविधान आज आया है,
लेकिन हम अभी पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आंदोलन की आड़ में लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, आंदोलन की आड़ में लोग देश को जलाना शुरू कर देते हैं, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक नरेटिव, एक फॉल्स नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि दो तरह की बातें की जा रही हैं कि एक तो वो मुसलमान विरोधी हैं और एक वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं दोनों ही चीज को कवर करना चाहती हूँ। हालांकि मुस्लिम पर्सपेक्टिव को तो मैं अभी क्लियर कर ही चुकी हूँ कि किस तरह से फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करा जाता है, और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत में इतनी ज्यादा पॉलिसीज माइनॉरिटीज के लिए, हालांकि मैं पर्सनली आई रिफ्यूज टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी, मैं ऑफेंड हो जाती हूँ कोई माइनॉरिटी कहता है तो मुसलमान को, तो बट स्टिल क्योंकि आप ऑन पेपर्स माइनॉरिटी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में माइनॉरिटीज के लिए इतनी ज्यादा पॉलिसीज, इतनी ज्यादा योजनाएं, और मुसलमान बच्चियों की शादियों के लिए, मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, और जो हमारी करंट लीडरशिप है उनका जो विजन है मुस्लिम्स के लिए वो है एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, कि आपको आपके फेथ से अलग नहीं कर रहे हैं, बट आपको एक ग्लोबल कंपटीशन में compete करना है, आपको भारत को रिप्रेजेंट करना है विदेशों में, आपको अपने देश का परचम लहराना है, तो आपको मेन स्ट्रीम में आगे आना पड़ेगा। आप उस विक्टिम कार्ड से, माइनॉरिटी कार्ड से आगे आइए, पढ़िए लिखिए। मुसलमान बच्चे का भी उतना अधिकार है जिंदगी जीने का जितना एक नॉन मुस्लिम का अधिकार है। तो इसलिए एंटी मुस्लिम नैरेटिव तो कौन क्रिएट करता है वो मैं पहले सवाल में कवर कर चुकी हूँ। जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने के जो इल्जाम लगाए जाते हैं वो दो मेन चीजों को मैं कवर करना चाहूंगी। एक, मोदी जी के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट हुआ एनआरसी में। एनआरसी की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी कि देश का एक ऐसा रजिस्टर जिसमें सिटीजन्स की लिस्ट हो कि कौन आपके देश का नागरिक है, कौन आपके देश का नागरिक नहीं है। सबसे पहली चीज, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे नागरिकता कानून ना हो, हर देश में सिटीजनशिप लॉ होती है। जो लोग भारत जला रहे हैं नागरिकता कानून के विरोध में, जब वो विदेशों में जाते हैं तो वहां की सिटीजनशिप लॉ सर के बल खड़े होकर फॉलो करते हैं, सर के बल खड़े होकर फॉलो करते हैं, क्योंकि माननी पड़ती है, नहीं मानेंगे तो नहीं घुसने देंगे वो देश में, क्योंकि ये भारत माता है, क्योंकि ये माँ है। इससे आप जिद भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, बदतमीजी भी कर सकते हैं, तो वही आप कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझ जाइए कि ये माँ है, ये माँ का आंचल जब तक सर पे है साहब, तब तक आप लड़ भी रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर कभी गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, ये आंचल सर से हट गया या आपको सीरिया या अफगानिस्तान या पाकिस्तान जाना पड़ गया, तब आपको इस भारत माता की कदर पता चलेगी। तो देखिए, ये मैं आपको एज अ मुस्लिम बोल रही हूँ। एज अ लॉयर मैं आपको सिटीजनशिप लॉ के बारे में क्विकली कुछ बातें बताना चाह रही हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप लॉज की बात करता है। जो लोग कंफ्यूज हैं, यूथ जानना चाहते हैं, उनको बोलूंगी कि आप पढ़ लीजिए। एक सिटीजनशिप एक्ट है 1955। तो आर्टिकल 5 to 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, दैट इज द कंसोलिडेटेड सिटीजनशिप लॉ ऑफ भारत। लेकिन वो लॉ प्रॉपर सेंस में फॉलो नहीं हो रही देश में। किसी भी कंट्री से कोई भी आके इम्पोस्टर रहने लग जाता है, कोई भी बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके आके रहने लग जाते हैं, फर्जी सारे आईडीज बन जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, इन द गार्ब ऑफ बीइंग अ सिटीजन वो देश में हमारे रहने लगते हैं। अच्छा, ये सिटीजनशिप की कैटेगरी का डिफरेंस इसलिए जरूरी है वर्षा जी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है। दीज आर ओनली मेंट फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 30 अधिकार देता है माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का। अगर आप भारत के नागरिक हैं, आप वो अधिकार एक्सरसाइज करिए, आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करिए, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। इमेजिन करिए कोई पाकिस्तान का कोई आतंकवादी भारत में आके रह रहा है और उसने यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं, हम उसको भारत का नागरिक समझ रहे हैं, और वो आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हमारे देश में खोल के बैठा है। उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से कितने माइंड्स को वो ब्रेन वॉश कर रहा है, कितने आतंकवादी हमारी ही रिसोर्सेस पे खाकर हमारे ही देश में हमारे ही खर्चे पे पाल रहा है, और फिर उन्हीं को सुसाइड बॉम्बर बना के हमारे ही देश में आग लगवा रहा है। तो क्या हम होने दें? एज सिटीजन सोचिए, इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? तो ये देखिए, ये एक नरेटिव क्रिएट करते हैं, फॉल्स नरेटिव। सिटीजनशिप लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। किसी भी कंट्री की जो संप्रभुता होती है वो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से,
उसके सिटीजन से और उसके कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी होती है। अगर तीनों में से आप किसी भी चीज को वायलेट करते हैं तो पूरा नेशन कोलैप्स कर जाता है। तो इसमें तो हर भारतवासी को मांग उठानी चाहिए कि एनआरसी बहुत जल्दी भारत में लागू होना चाहिए। एंड इट हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम्स, इट जस्ट हैज टू डू विद सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। ये एनआरसी का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हूँ। दूसरा, एक एंटी मोदी जी नैरेटिव क्रिएट किया गया था सीएए में, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को हम अपने यहाँ सिटीजन नागरिकता लेने में थोड़ी सी सहायता कर देंगे, सिर्फ थोड़ी सी सहायता कर देंगे। कोई बहुत बड़ा आप उनको कोई महल बना के नहीं दे रहे हैं, हम उनको कोई बहुत ज्यादा अधिकार भी नहीं मिल रहे हैं जो इतना ज्यादा बवाल कर दिया था कि मुसलमानों को भारत से निकाल देंगे। सीए में तो मुसलमान वर्ड भी नहीं है, सीए में सिर्फ जो परसिक्यूटेड लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, उनको आप अपने देश में शरण दे रहे हैं। अब सिटीजन बनने के भारत में 5 कैटेगरीज हैं, या तो आप बाय बर्थ सिटीजन हैं, या फिर आप बाय डिसेंट, ईदर ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप सिटीजन है, या फिर बाय रजिस्ट्रेशन, आप बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजन बन सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, फॉर्म भरिए, या फिर आप बाय नेचुरलाइजेशन, आप पिछले 11 साल से भारत में रह रहे हैं तो भी आप भारत के सिटीजन बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बाय एक्विजिशन कि अगर भारत ने कोई लैंड एक्वायर कर ली तो आप जो है उस जगह के नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो सीएए में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के प्रताड़ित लोगों को, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को, रिलीजियस वर्ड ये लोग गलत दे रहे हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को नेचुरलाइजेशन की कैटेगरी में, जो 11 साल से आप भारत में रह रहे हैं तो आप नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उस 11 साल में सिर्फ 5 साल का रिलीफ दे दिया गया है उन बेचारे प्रताड़ित लोगों को जिनका मास रेप, मर्डर, स्लॉटर हो रहा है, जिनकी बहू बेटियों का जबरन धर्मांतरण हो रहा है, गैंग रेप्स हो रहे हैं, उनके गले रेते जा रहे हैं, उनको आपने सिर्फ नेचुरलाइजेशन में 5 साल का रिलीफ दे दिया है। इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आपने जो है एक पूरा एक राइटियस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आपने पूरे विश्व में एक कैंपेन स्टार्ट कर दी है। देखिए, मोदी जी एक बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर है वर्षा जी, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। बहुत जल्दी ऐसा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिलता है, और जितनी भी एंटी नेशनल फोर्सेस हैं वो सब एकजुट हो गई हैं मोदी जी के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए। आपको देखिए, प्रशासन उनका देखिए, आप उनकी लॉ एंड ऑर्डर देखिए, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने कितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं भारत में। एक सांप्रदायिक दंगा बता दीजिए आप भारत में जो मोदी जी, आप बोलते हैं फासिस्ट हैं, नाजी हैं, और आप झूठ की पूरा पुलिंदा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक सांप्रदायिक दंगा 135 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में आप मुझे बता दीजिए जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद। या फिर आप उनकी विदेश नीति की बात करिए, फॉरेन पॉलिसी की बात करिए, कितना सम्मान भारत को इस टाइम पूरे विश्व पटल पे मिल रहा है। क्या वो अब से पहले तक हमारे पास था? इवन इस्लामिक स्टेट्स में, सऊदी अरब में पिछले 5-6 साल में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस्लामिक स्टेट में मिल चुके हैं। अगर वो इतना एंटी मुस्लिम होते तो मुस्लिम कंट्रीज क्या उनको इतना सम्मानित कर रही होती? और दूसरी कंट्रीज में आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ स्ट्रेंथ के मामले में मोदी जी की, कि देखिए बहुत सारी इंटरनेशनल कंट्रीज थी कि हमारी दोस्त थी पहले, लेकिन हमें कमजोर मानती थी। दोस्त भले ही थी, हमारी मदद भी करती थी, लेकिन हमें फिर भी कमजोर मानती थी, हमारी डिसीजन मेकिंग में हावी रहती थी। आज वो गिव एंड टेक हो गया है। आज अगर हम मदद ले रहे हैं तो हम मदद दे भी रहे हैं। आज हमारी दोस्ती बराबरी की है, और दोस्ती हमेशा बराबरी की होती है। आप अगर किसी से सिर्फ मांगते रहेंगे तो वो आपके ऊपर हावी होता है। पहले अगर हम कश्मीर की भी बात करते थे तो पूरा विश्व हावी हो जाता था, कश्मीर में ये होना चाहिए, कश्मीर में ये होना चाहिए। आज हम पीओके की भी बात करते हैं, पूरा खूंटा गाड़ के करते हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, क्योंकि सबको पता चल जाए कि स्ट्रेंथ में, जस्टिस में, डिटर्मिनेशन में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। तो लोग हमें सम्मान की, रिस्पेक्ट की नजर से देख रहे हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। यही कारण है कि भारत को तोड़ने वाली मानसिकताएं पूरा नेक्सस बना के मोदी जी के खिलाफ एक कैंपेन खड़ी करने की कोशिश करती हैं। और कोरोना प्रबंधन आप उनका देख लीजिए, कोविड मैनेजमेंट कितना जबरदस्त हुआ है भारत में। देन दूरदर्शिता, कि सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिसीज बना दी, इंटरनेशनल पॉलिसीज या इंटरनल पॉलिसीज, बल्कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं मोदी जी, तो वो बात करते हैं एक स्वाभिमानी भारत की, जो एक अपने पैरों पे खड़ा हो,
जिसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपने ऊपर अभिमान हो, स्वाभिमान हो, जो कॉन्फिडेंट हो अपनी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए फ्यूचर में भी। तो मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा बहुत समझता होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या भारत के इंटरनल इश्यूज, वो जानता है कि एंटी मोदी नैरेटिव कितना झूठा इस देश में क्रिएट करा जा रहा है और उसके पीछे क्या कारण है बहुत अच्छे से समझा जा रहा है। आई एम एब्सोल्युटली विद माय प्राइम मिनिस्टर। और बिल्कुल भारत का मुझे लगता है हर राइटियस नागरिक उनके साथ है। बहुत ही अच्छी जानकारी सुबी जी। Now next question from Bakshi sir. बहुत अच्छी तरह से you have actually shared your thoughts about Prime Minister Modi, his policies, and his aura, his building global world, connecting to the global world. All Muslim countries in the world are respecting him for what he has done. It's a fact of life. And I think we all feel very proud that we are living in an era where Prime Minister Modi is our Prime Minister of the country. You know, last 70 years in this country, how this country has been here. Ajay Chaudhary was trying, as I said in the beginning, Ajay Chaudhary for Germany was, he is the one who connected. Finally, he could get connected to us. He's already online watching this show from Germany. And in the meanwhile, Meenakshi already joined from Toronto. She is also watching you. Nidhi is watching you from Vancouver again. And people are joining more and more, and we are going strong on this discussion. While we talked about COVID days, India has been very powerful during COVID days also. Second wave made us little tough, difficult. But there were some people, oh, I will not take vaccination. ये तो BJP vaccination होगी. Why should I? No, मैं तो कभी कराऊंगा ही नहीं vaccination. You know, all these netas. And vaccination is a must. So all of us feel proud today. India is the only country in the world record, as on date, around 38 crore people have been vaccinated. We have vaccinated more than America. We have vaccinated 10 Australias. We have vaccinated 100 Thailands. We have vaccinated, I think, 40 Englands. And एक narrative बनाया गया देश में about vaccination, and you know, a lot of people stopped getting into the vaccination drive. I want to share with you while we talk about Atmanirbhar Bharat, Make in India, India becoming global India. And India is, I was just watching a video today, India is the global leader in any case, and especially to 2014 onwards, we proudly talk about India. And I will share with you when we meet for the lunch sometime next week. We have a plan. And I'll share you how Narendra Modi, when he came to Bangkok, Sawadhi Modi, how people got mad about him there. So that is the respect. That is the respect. But I want to, how can we, you as a promoter of New India, I am also a promoter of New India. मैं तो अपने झंडा लेके थाईलैंड का इंडिया का ऐसे लेके चलता रहता हूँ हमेशा। ये मेरा पावर है, ये मुझे पावर देता है। And I'm sure. मेरे को ये बताइए, how will we, people like you, me, others, change this narrative in the country for India as a powerful nation in the world, so that these negativities of anti-vaccination, empty things can go away. Quick response, because we are racing with the time now. Quick response. How can we change it? Do you think यही रोज हमें करना पड़ेगा? प्रवचन मार टक 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 रोज करना पड़ेगा? हैमरिंग करनी पड़ेगी? हैमर 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 रोज मैं बोलता हूँ यंगिस्तान 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 यंग इंडिया। और कोई रास्ता है कि यही है कि हैमरिंग करनी पड़ेगी रोज? What is your view on this? Quick response. देखिए, हैमरिंग तो रोज करनी पड़ेगी, ये भी बहुत जरूरी है, बिकॉज बार बार रिमाइंड करना चीजों को जरूरी होता है, सो दैट वी डोंट फॉरगेट एंड वी डोंट स्लीप ऑन इट।
तो जो अक्सर टेंडेंसी हो जाती है लोगों की। लेकिन इस चीज को समझने के लिए कि ये जो एंटी भारत नरेटिव बन जाता है, उसके लिए समझने के लिए हमें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा कि कैसे, मतलब ये सारी ताकतें, जैसे आपने बोला कि कुछ नेता, मैं बोलती हूँ कि विधर्मी राजनीतिक पार्टियां, मैं उनको बोलती हूँ, वो सिर्फ एक एंटी नेशनल फोर्स में उनको मानती हूँ। आई वुड क्विकली लाइक टू टेल कि 6 एंटी नेशनल फोर्सेस भारत के खिलाफ काम कर रही हैं। और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए ही बख्शी जी, मैंने एक राष्ट्र जागरण अभियान नाम से, जैसा आपका ये वुमेन पावर मूवमेंट है, मैंने एक राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिस विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंटी नेशनल फोर्सेस, ब्रेकिंग एंटी इंडिया फोर्सेस एंड यूनाइटिंग भारत। और आप एंटी इंडिया फोर्सेस को ब्रेक तभी कर पाएंगे जब आप उनको समझेंगे। तो 6 एंटी नेशनल फोर्सेस आर एक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट ब्रेकिंग भारत, जिसमें वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग माओवादी और नक्सलवादी हैं। सेकेंड एंटी इंडिया फोर्स, इट्स सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट, जिसमें हमारे सिख भाइयों को भारत के खिलाफ भड़का के खालिस्तान बनाने की मांग करवाई जाती है, और मुसलमान भाई बहनों को भड़का के भारत के खिलाफ इस्लामिक स्टेट बनाने की मांग कराई जाती है। ये सेपरेटिस्ट एंड टेररिस्ट मूवमेंट इज सेकेंड एंटी इंडिया फोर्स। देन थर्ड एंटी इंडिया फोर्स इज इंटरनेशनल पावर्स, जो भारत को विश्व गुरु नहीं बनने देना चाहती हैं। देन फोर्थ इज इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट एंड अर्बन नक्सल्स, जो सूटेड बूटेड लोग हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस में बैठे हैं, मीडिया में हैं, एकेडमिशियंस हैं, और यूथ को हमारे भड़काते हैं या भारत से तोड़ते हैं। दे आर बौद्धिक आतंकवाद, जिसको मैं बोलती हूँ, दे आर मोर डेंजरस देन द एक्चुअल टेररिस्ट। और एक्चुअल टेररिस्ट तो आपको दिख जाता है सामने से आता हुआ, बट ये बहुत इंसीडियस वे में आपकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। देन विधर्मी राजनीतिक पार्टियां, जो हमारे अपने लोग हैं, हमारे देश में की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बट वो सत्ता में रहने के लिए किसी भी एंटी नेशनल फोर्स के साथ हाथ मिला सकते हैं। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया कि कोविड के टाइम पे केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवा, पैसा दे ही तो सकती है, उसको लोगों में बांटेंगे या लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप, लेकिन आप केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए, लोगों की लाशों पे राजनीति करने के लिए तैयार हैं। इवन कोविड मैनेजमेंट में आप देखिए, सबसे ज्यादा जो कोविड के हालात खराब हुए वो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में हुए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, दिल्ली। ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक बहुत कैलकुलेटेड एक एक्टिविटी है। तो ये एंटी नेशनल फोर्सेस हैं, और 2 एंटी नेशनल फोर्सेस, आई थिंक वन इज लेफ्ट, दैट इज कन्वर्जन माफिया, जो डायरेक्टली आपको आके लड़ते नहीं है, लेकिन बहुत सटल वे में आदिवासी बेल्ट्स में जा जाके एक हाथ से आपको रोटी देते हैं, दूसरे हाथ से आपको कन्वर्ट कराते हैं। तो these 6 anti-national forces are working against us together. So we have to break them. हमें कास्ट, क्रीड, जेंडर, हर चीज से ऊपर उठ के, अपने रिलीजन से ऊपर उठ के, एक नेशनलिस्ट बनके, भारतीय बनके, एक होकर एक साथ इन सारी पावर्स के खिलाफ लड़ना होगा, तभी इसका सोल्यूशन होगा। अगर हम सोचें अकेले पॉलिटिकल पार्टी या अकेले मोदी जी 135 करोड़ लोगों को बचा लेंगे, so that is very unrealistic expectation बख्शी जी। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि जब देश का एक एक नागरिक देश के लिए खड़ा हो जाता है, तो वियतनाम जैसा छोटा देश चीन और अमेरिका जैसे देश से जीत जाता है। तो एक एक भारतीय नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। दैट इज द कॉल फॉर अस। वो हमारी एक, कहते हैं ना कि भारत माता की पुकार है, और भारत पुत्र और पुत्रियों की जरूरत है, जो भारत में रहते हैं वो भी, और जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनकी भी हम लोगों को जरूरत है कि इस मूवमेंट में सब लोग साथ मिलकर काम करें। वर्षा जी, एक क्वेश्चन आप ले लो, टाइम बहुत हो गया, लास्ट वाला क्वेश्चन ले लो फटाफट, एंड देन आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। ओके सुबीर जी, आर्टिकल 370 के बारे में आपके क्या विचार हैं, और कश्मीरी पंडितों की वापसी संभव है क्या, और कैसे? This is very close to my heart. Because you are talking to Actually, नहीं बिल्कुल। और अभी आपने बोल दिया कि you're running short of time, इस पे तो I can go on and on and on. देखिए आर्टिकल, we need your definite response on this. There are a lot of Kashmiri Pandits who are watching you now, and I'm a Kashmiri Pandit, and certainly I would like to know about this Article 370, what you feel on Kashmiri Pandits. Yes. जी। देखिए, जैसे CAA NRC पे एक एंटी मोदी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी, ऐसी आर्टिकल 370 के खिलाफ एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी। तो जो लोग नहीं जानते हैं, हालांकि आप लोग तो ऑब्वियसली कश्मीरी हिंदूज हैं, तो आप बेहतर समझते हैं, बट फिर भी बहुत से युवा मुझे सुनेंगे जो नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि आर्टिकल 370 कंप्लीटली नहीं गया है। आर्टिकल 370 का क्लॉज 1 जो ये कहता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है,
वो अभी भी एग्जिस्टिंग है। जो उसके बाकी के क्लॉज हैं वो सब स्क्रैप कर दिए गए हैं, क्योंकि वो सारे क्लॉज कश्मीर को अलग संविधान, अलग विधान, अलग प्रधान और एक अलग ही स्टेटस दे रहे थे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो एक टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन था। लेकिन किसी कारणवश विधर्मी राजनीतिक पार्टियों के शासन में हमारा देश इतने सालों तक रहा, तो आर्टिकल 370 को खत्म नहीं, पता नहीं किन कारणों से नहीं किया गया। वो एक अलग ही तरह से जम्मू एंड कश्मीर को चलने देना चाहते थे। तो देखिए, इसका जो मिसयूज होता था JNK में, वो जिन लोगों को लगता है क्यों हटाया गया, उनको मैं क्विकली 2 एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि कोई कश्मीरी लड़की अगर भारत के किसी लड़के से शादी कर लेती थी तो उसको अपनी प्रॉपर्टी से वंचित हो जाती थी कश्मीर की, और वही लड़की अगर POK के किसी लड़के से शादी कर लेती थी तो वो POK के लड़के को भारत की कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। तो कितनी दोहरा चरित्र है। देन जो दलित रहते थे कश्मीर में, जो 70 साल से भी रह रहे हैं, भारत के विभाजन के टाइम से भी जो दलित वहां पर रह रहे हैं, उनको वहां का नागरिकता अभी तक नहीं थी, जिस कारण उनको कोई स्टेट बेनिफिट्स नहीं मिलते थे, वहां की सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। तो कितना ज्यादा, जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, आप जस्टिस की बात करते हैं, कश्मीर अगर भारत का अभिन्न अंग है तो वहां पे अलग कानून, अलग संविधान, ये सारी चीज अलग क्यों चलें? भारत की कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लागू नहीं हो रहा है, भारत की सेंट्रल एक्ट्स वहां पे नहीं चल रही हैं, और इसी का फायदा उठाते हुए वहां पे अपराध हो रहा है, अलगाववाद हो रहा है, कट्टरवाद हो रहा है, आतंकवाद हो रहा है, पाकिस्तान के झंडे फहराए जा रहे हैं, कश्मीरी यूथ को जो है पत्थरबाजी करवाई जा रही है। तो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहा था जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 के कारण। तो बहुत ही डायनामिक डिसीजन है हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट का, उसका मैं पूरा सम्मान करती हूँ। और एक चीज मैं और भारतवासियों से बोलना चाहती हूँ कि इसको आप ये मत समझिए कि कश्मीर का इशू है आर्टिकल 370, क्योंकि ये एक मॉडल है जो भारत की अलग अलग स्टेट्स पे अप्लाई होता है। सेम यही चीज बंगाल में हो चुकी है जिस वक्त भारत विभाजन हुआ था। यही एक एजेंडा है, यही एक मॉडस ऑपरेंडी है कि आप उम्मत के नाम पे, एक इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे आप पॉकेट्स बनाते हैं, लोगों को फिर जिद पे आमादा करते हैं, फिर आप उनको कट्टरवादी बनाते हैं, जब वो कट्टरवादी बन जाते हैं फिर आप उनसे आतंकवाद करवाते हैं, जब वो आतंकवाद कर लेते हैं तब आप इस्लामिक स्टेट की डिमांड करते हैं। तो इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बनता है। तो प्लीज ये मत सोचिए कि आर्टिकल 370 सिर्फ कश्मीर का इशू था, वो भारत का इशू था, क्योंकि पहले भी भारत टूट चुका है इसी मॉडस ऑपरेंडी से। आज जो हो रहा था वो कश्मीर में हो रहा था, कल कश्मीर में हो रहा था, बल्कि रादर कहूंगी क्योंकि अब तो हट गया है 370, आज बंगाल में हो रहा है, कल केरल में होगा। तो वी शुड निप इट इन द बड। और इस चीज को पुरानी सरकारों ने सोचा नहीं। यही कारण है कि कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन हुआ, या विस्थापन एक बहुत छोटा शब्द है, मैं कहूंगी पोग्राम, या मैं कहूंगी जेनोसाइड, या फिर एथनिक क्लेंजिंग उनकी कश्मीर से जो हुई वो इसी कारण हुई। और वापस लौटने की जो आपने बात बोली है, देखिए डेफिनेटली वापस लौटना चाहिए, वो उनकी जमीन है। और ये एक बहुत बड़ा कलंक मेरे ऊपर भी, एक हिंदुस्तानी, एज एन इंडियन, इट इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन माय फोरहेड कि मेरे भाई बहन मेरे ही देश में रेफ्यूजी स्टेटस में आज के टाइम पे रह रहे हैं, उनके अपने मकान उनसे छूट गए, उनके परिवार उनसे छूट गए, उनके लोग बहुत सारे उनसे छूट गए, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर्स हुए। और भारत की, मतलब आजाद भारत का शायद मुझे लगता है इतना बड़ा एक मानव संघार इस देश में हुआ, उसको हम लोग अगर सीरियसली ना लें, उसके लिए आवाज ना उठाएं, तो लानत है हमें ये कहने में कि हम भारतीय हैं। एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग हार्श, मैं यही बोलूंगी। और किस तरह से वो वापस जाएं, वर्षा जी ने पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशन होता है वो प्रॉब्लम में ही मिलता है। जिस तरह फोर्स से उनको निकाला गया, उसी तरह फोर्स से उनको ससम्मान कश्मीर में एंट्री दिलाई जाए, जो कि सरकार कर सकती है। जैसे 30 साल उन्होंने झेला, कम से कम 20 साल उनकी सुरक्षा का इंतजाम करिए। और जैसे सब लोगों ने एक पूरा एक नेक्सस बना के, मीडिया में, अखबारों में इश्तिहार निकल रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, जैसे सब लोगों ने एक होकर, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी हाथ खड़े कर दिए, सुरक्षा कर्मियों ने किसी की सुरक्षा नहीं करी, जिस तरह से उनको बिल्कुल अकेला कर दिया गया और सब लोगों ने कहीं ना कहीं मौन समर्थन दिया उस अपराध को, वो तो सब लोग उस मौन समर्थन के लिए प्रायश्चित करें। जरूरी नहीं है कि आपने आगे एक्टिवली आके किसी कश्मीरी हिंदू का बुरा किया हो तो ही आप जिम्मेदार हैं। अगर आप मौन रहे या सब कुछ जानने के बाद आप आज भी मौन हैं, तो भी आप उतने ही
you are equally responsible as the culprits. तो मुझे लगता है कि सब लोगों को मिलजुल के उनको आगे स्थापित करने में रोल देना चाहिए. जो इस्लाम के कुछ समझदार स्कॉलर्स हैं उनको पब्लिकली कश्मीरी हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए. मैं तो हर प्लेटफॉर्म में जहां भी मुझे कश्मीरी हिंदू मिलते हैं, मैं एक कहते हैं कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मूवमेंट टाइप चला रही हूँ. और जितना भी मेरे अपने मैं सक्षम हूं, मैं लिटरली माफी मांगती हूँ कि मेरे फेथ के नाम पे अगर आप लोगों को वो दर्द महसूस करना पड़ा, मेरे फेथ के नाम पर आप अपने घर से निकाले गए, मैं एज एन इंडियन मुस्लिम आप लोगों से माफी मांगती हूँ. बिकॉज वो दिलों से और दिमाग से वो दर्द मिटना बहुत जरूरी है. तो मुझे लगता है सरकार और समाज दोनों का रोल है कि इसमें आगे आकर उनको पूरे सम्मान के साथ वहां पे स्थापित किया जाए. और मैं इस मूवमेंट पे जितने भी कश्मीरी हिंदू मुझे सुन रहे हैं, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ. तो मोहित जी, बहुत प्यारा आपने इसका दिया हमें. इनफैक्ट आवर डिमांड इज certainly one place settlement. We are very focused, and I belong to Global Kashmiri Pandit Diaspora. GKPD has been fighting for the genocide to be declared because we have lost people, and it has been a genocide for our community. And हम कश्मीर वापस जाएंगे. We would like to go back to Kashmir. और हमें कश्मीर जाना है. कश्मीर हमारा है. कश्मीर और रूट अंग है हिंदुस्तान का. And not only that, हमारा जो other part of Kashmir है, we have to get that also in hand. As a proud Indian, on this today, on this webinar and on the social media, I declared on behalf of Global Kashmiri Pandit Diaspora, as a Kashmiri Pandit, we would like to go back to our roots. And we would like to have other Kashmir जो हमसे छीना हुआ है वो भी अपने साथ. And we are thankful to Narendra Modi and Amit Shah for 370 and 35A removal. And we are looking forward to making our dream come true, to go to our roots, go to our home. And I would like to tell you, I am the founder of Global Kashmiri Pandit Business Foundation. हमारा वो foundation भी चल रहा है. Through the business route also, a lot of Kashmiri Pandits around the world, or part of it, are ready to invest. And not only KP, even the non-Kashmiri Pandits invest in Jammu and Kashmir. Because of COVID, it got delayed. My last question now before I take, how will you, Subhuji, आप तो छोड़ने वाले नहीं हैं, how will you contribute to my movement? My movement is our movement, and make it possible to further strengthen not only in India, globally, to create the respect for the human power of the world. I don't care which religion, which color, which race, and which country, which nationality. For me, one woman, one respect, one love, one world, and women are our strength. And it's because of women we continue our legacy to move forward. What is your support to our movement of #WomenPowerGlobal? बख्शी जी, मैं जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि आई वॉज वेरी टच्ड विथ द मूवमेंट. आपने जो ये टास्क ली है, इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो बट वेरी रेलिवेंट, ना ही सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए. और मेरा जो भी कंट्रीब्यूशन आप मुझे लगता है कि मैं दे पाऊंगी, आई थिंक हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर सकते हैं. नॉट जस्ट ऑनलाइन, वी कैन हैव वेरियस प्रोग्राम्स, और जो अंडर प्रिविलेज्ड विमेन है उनको उनके राइट्स भी बताना. लाइक एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूं, कुछ ट्राइबल एरियाज का मुझे पता चला था. आई वाज शॉक्ड कि कुछ महिलाओं को ये भी नहीं पता था कि रेप इज अ क्राइम. कैन यू इमेजिन? कुछ ऐसी ट्राइबल एरियाज की और कुछ महिलाएं, जैसे हम लोग प्रिविलेज्ड होते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है, हमें एजुकेशन मिलती है कि हमें अपने राइट्स एंड ड्यूटीज पता है. बहुत सी ऐसी महिलाएं जिनको महिला होने की जो एक इम्पोर्टेंस है वो भी नहीं पता है. तो मुझे लगता है कि मैं इस तरह के रिमोट एरियाज में भी जाकर काम करने के लिए तैयार हूँ. और ऑब्वियसली जो वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस जो भी करते हैं, उसमें जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यू कैन काउंट मी इन. मैंने आपको पर्सनल कॉन्वर्सेशन में भी बोला था और इस प्रोग्राम में भी बोल रही हूँ. और एक मैसेज में जो भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं उनको भी देना चाहती हूँ. One message I want to give, as I said, कि nobody can empower a woman. A woman, if you are born as a woman, you are already empowered. You just have to realize, you just have to understand and respect the strength that God has given you physically and mentally. And
नो योर राइट्स एज वेल एज योर ड्यूटीज। ये मैं जरूर बोलती हूँ विमेन एम्पावरमेंट में कि कई बारी हम लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते करते वो लाइन क्रॉस करके सूडो फेमिनिज्म में कब चले जाते हैं, वी डोंट रियलाइज। तो वो बैलेंस भी हमें जरूर समझने की जरूरत है कि सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करना है, बल्कि कर्तव्यों की भी बात करना है, ड्यूटीज की भी बात करना है। और जैसा आपने बोला कि जब हम भारतीय महिलाओं की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति भी महिलाओं को किसी ड्रेस कोड में भी नहीं बांधती है। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट तो आपकी कोई कम भारतीय है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको किसी भी एक मेंटल ब्लॉक में जब बांध दिया जाता है या आपको ये बोला जाए कि आप, जैसे मैंने एक एड देखा था, स्पेशली भारतीय औरतों के लिए मैं मैसेज देना चाहती हूँ। आई सॉ एन एड जिसके अंदर एक साड़ी काट के एक महिला ने मिनी स्कर्ट बनाई हुई थी एंड शी वाज फ्लॉन्टिंग इट कि जैसे वो किसी पिंजरे से आजाद हो गई है, नाउ शी इज वेयरिंग अ मिनी स्कर्ट एंड शी इज फीलिंग प्राउड अबाउट इट। तो मैं ये मैसेज और जरूर महिलाओं को देना चाहती हूँ कि मिनी स्कर्ट पहनना खराब नहीं है, लेकिन आप सोचें कि साड़ी काट के आप मिनी स्कर्ट पहन रहे हैं, आप साड़ी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अपनी लाइक को प्रमोट करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए आप किसी दूसरे कल्चर को या दूसरे के बिलीफ को डिमीन कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। हमारी संस्कृति में तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में वेदर कंडीशंस इतनी अलग हैं, कहीं पे ठंड है, कहीं पे गर्मी है, तो हमारी संस्कृति तो किसी एक ड्रेस कोड में भी नहीं बंधी है। आवर इंडियन कल्चर इज वेरी मॉडर्न इन दैट सेंस। और एक बार एक कम्युनिस्ट मानसिकता के एक इंसान ने मुझे डिबेट पर बोला था कि आप क्या चाहती हैं जब आप भारतीय संस्कृति की बात करती हैं और पुरानी उसमें लौटने की बात करती हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि महिलाएं घूंघट में बैठ जाएं? तो मैंने उनसे लाइव डिबेट पे आई आस्क्ड हिम, हमारी कौन सी देवी को आपने घूंघट में देखा है? कोई देवी भारतीय संस्कृति की घूंघट में नहीं है। वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ फियर्स वॉरियर्स, we have examples of very strong administrators, we have examples of mothers, we have example of teachers। हमारे यहाँ वेदों में गार्गी, मैत्री, मदालसा वेदों में वो श्लोक लिखती हैं। कौन सी संस्कृति में किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में महिलाएं लिखती हैं ग्रंथ? तो मैं इंडियन महिलाओं से भी ये कुछ 2-3 बातें जरूर बोलना चाहती हूँ कि बी अनअपोलोजेटिक एंड फियरलेस अबाउट योर राइटियस कन्विक्शंस and know your rights as well as duties। और women empowerment के चक्कर में सूडो फेमिनिस्ट के जाल में मत फंस जाइएगा, ये मैं जरूर मैसेज देना चाहती हूँ। और इस पे आई थिंक वी कैन हैव वेरियस सेशंस। आज भी हमारा, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम कवर करना चाहते थे और नहीं कवर कर पाए, तो उसके लिए आई एम श्योर आई हैव रिग्रेट, बट मे बी वी कैन कवर इट इन आवर फ्यूचर सेशंस। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली, it was lovely being a part of this brilliant webinar। Couple of questions I have quick, and this is question, what do you think about the liberation of women in social life? Anjana is asking a question. Social life. Social life. She is asking what do you think about liberation of women in social life? Liberation, as I said earlier, I don't think women need to be liberated. I feel that they just have to realize and break the shackles of those social conditioning। और बहुत सारी चीजें बचपन से देखिए, when we are born, we are always born with a free mind। कुछ social teachings होती हैं, कुछ family conditioning ऐसी होती हैं जो हमारे mind को बांध देती हैं। हमें उस चीजों से अपने mind को just free करना है and just be liberated in your thoughts। और मुझे लगता है कि हर चीज थॉट से शुरू होती है एंड थॉट वेव्स आर वेरी पावरफुल। यू कैन क्रिएट योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स। आप जो यू कैन बिकम व्हाट यू थिंक। तो मुझे लगता है कि अपनी सोच को लिबरेट कर लीजिए तो सोशल लाइफ में और किसी भी चीज में, किसी भी एस्पेक्ट में आप डेफिनेटली लिबरेट ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। You can become what you think। And an anonymous question, he is not given his name. Since you are a very open person, not afraid of expressing yourself, do you receive threats by staunch Maulvis and Muslims? I receive threats from almost all the anti-national forces, by Muslim radicals as well as communists as well as विधर्मी पॉलिटिकल पार्टीज। और ये भी मैंने एक another very good
principle I would rather say, would like to share with you all, कि how to become fearless. That also I have learned from Vedant. वेदांत में एक वेदांत क्लास में मैं ये भी मैं आपको बताना चाहती थी बट कवर नहीं हो पाया कि मैं योग का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है या मेडिटेशन का, या मेरा कुछ आश्रम्स हैं जहां मैं जाती हूँ, वहां से जो कुछ मैंने सीखा. तो हमारी वेदांत क्लास में एक बार मुझे एक बात बताई गई थी कि जो पुराने जमाने में जो स्वामीज या सेंट्स होते थे, हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो 200 साल 300 साल 500 साल या 1000 साल इसलिए जी पाते थे क्योंकि वो अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल कर पाते थे, वो अपनी ब्रेथ बहुत लंबी कर पाते थे. और जब हम जिस टाइम हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारी नंबर ऑफ ब्रेथ्स डिसाइड हो जाती हैं कि ये इंसान इतनी सांसें लेकर मरेगा. उस सांस को आपकी कोई दुनिया की ताकत कम नहीं कर सकती. अगर आपकी 1 करोड़ सांसें लिखी हैं तो आप 1 करोड़ सांस जीकर ही जाएंगे. ऋषि मुनि उन सांसों को लंबा कर लिया करते थे, तो लेंथ ऑफ दैट ब्रेथ बढ़ा लिया करते थे प्राणायाम से, इसलिए इतना लंबा जीते थे. तो दैट डे आई बिकेम फियरलेस कि जितनी सांसें लिखी हैं उतनी तो जीकर जाऊंगी, जिसको जितनी धमकी देनी है दे दो. सो दैट इज अनदर टिप आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीबडी, हाउ टू बिकम फियरलेस. Very great. Subui ji, I am really impressed. We have gone more than, so 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया वर्षा जी. Yes, I know. yes. Oh my God, पता ही नहीं चला टाइम का. And we can still go on and on, but with Absolutely. the passage of time, we need to close this program. I would like to thank everybody who has joined from different parts of the world, from New Jersey, from Vancouver, from Toronto, from Dubai, from Abu Dhabi, from Thailand, Singapore, Germany, Spain, England, India, Afghanistan. And I was saying from Afghanistan, this lady is required in Afghanistan. You know, Afghanistan. Thank you so much. And different parts of the country. And the way you could respond to our questions and give a lot of clarity. As I said in the beginning, I have been excited to meet you on the show. And as committed, since I am in India, we will be meeting you for lunch sometime next week, traveling to Gurgaon and spending some time with you, because we need to get a lot of positivity and vibration. Ladies and gentlemen around the world, great program. Those who could not watch, a YouTube will be available on the social media in next half an hour. I would like to thank each one of you who is still there. And Beenaji is still there. Ravi Sehgal Saab, India Thai Chamber of Commerce, President is still there. Shivani ji is still there. Aditya Gadiyal is still there. Ankita Rana is still there. Anita Rana is still there. Sibi Rana is still there. Milane from Spain is watching still there. I don't know what she could pick up the Hindi because she was writing. She was writing and a lot of things getting into your local language. But you give me a translation later. She's another very great women power for us in Spain. So, tahe dil se, from the core of my heart, Subui ji, I am thankful to you for your time, for your contribution. And आपको जानकर आज एक और, I am also driving power of positivity, leading to power of persistence, leading to power of perseverance, leading to power of performance, leading to power of passion, leading to power of pride. And you also further strengthened my concept of New India and one love, one world, and where we can make India great. Thank you so much, Bakshi Bakshi ji. Thank you so much for your time.